जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आस भरीने આવ્યો સ્વામી ભક્તિમાં નવી રાખું ખામી પૂરે જો અમારી આ એ શંખેશ્વરા રાખજો અમારી લાજ ઓ શંખેશ્વરા તાર તાર હો પ્રભુજી હું તો જેવો છું તેવો તમારો કોઈ નહીં અહીં મારું પ્રભુ આપી દે મુજને સહારો પાર કરો ઉદ્ધાર કરો મુજ જીવન નૈયા ઓ શંખેશ્વરા રાખજો અમારી લાજ ઓ શંખેશ્વરા ભાન ભૂલી ગયો છું પ્રભુ સન્મતિ તું મુજને દેજે રાહ ભૂલી ગયો છું મને રાહ બતાવી તું દેજે માયા કેરી આ દુનિયામાં રજડી પડ્યો છું આ એ શંખેશ્વરા રાખજો અમારી લાજ ઓ શંખેશ્વરા આસ ભરીને આવ્યો સ્વામી ભક્તિમાં નહીં રાખું ખામી પૂરે જો અમારી આ એ શંખેશ્વરા રાખજો અમારી લાજ એ શંખેશ્વરા જય જિનેન્દ્ર। આ ભવના સાગરમાં સહારો એક જ મારો તું મજદાર બસી નૈયા હવે તો એક કિનારો તું આ ભવના સાગરમાં મૃગ જળને મેં સરોવર માન્યું બૂજી ન મનનિયા બૂજી ન મનનિયા अन्य तणियों पास ना कीदी ना पूजा वितरा ना पूजा वितरा આવ્યો તુજ ચરણો આવ્યો તુજ ચરણો માં હવે તો તારણ હારો તું આ ભવના સાગર માં મુક્તિ માર્ગનો હું અભિલાષી ના કોઈનો સંગા ના કોઈનો સંગા આકુળ વ્યાકુળ મનડું મારો વાંચે તારો સા વાંચે તારો સા અંધકાર ભર્યા પંથે અંધકાર ભર્યા પંથે પ્રવાસીનો સતવારો તું આ ભવના સાગરમાં તું નિર્મોહી સદગુણ સાગર
હું અવગુણ ભંડાર, હું અવગુણ ભંડાર. કર્મના બંધન ચૂર કર્યા તે હું રચ્યો સંસાર, હું રચ્યો સંસાર. અંધારા મુझ દિલ માં, અંધારા મુझ દિલમાં, ચમકતો તેજ સિતારો તું આ ભવના સાગરમાં, આ ભવના સાગરમાં. સહારો એક જ મારો તું, મજદાર પછી નૈયા. હવે તો એક કિનારો તું આ ભવના સાગરમાં. જય જિનેન્દ્ર. મુશ્કેલ ડગર છે, લાંબો સફર છે, ચાહું છું તારો સાથ. ચાલ્યો છે તારો હાથ મેં પ્રભુજી, હવે ના છોડું સાથ. ચાલ્યો છે તારો હાથ મેં પ્રભુજી, હવે ના છોડું સાથ. તારી મારી જે પ્રીતિ છે, મુझने લાગે મીઠી છે. આવી પ્રીતની ગાંઠો જગમાં ક્યાંય ન બીજી રે. ચકોર ચાંદો જોઈને રાજે, મેઘને જોઈ મોરલો નાચે. તેમજ જ્યારે તુજને નિરખું, મારું મનડું થઈ થઈ નાચે. મારા રાજ તુલ્હારા, મારી પ્રીત ન ક્યારા. મારા તારણ હારા, મારી પ્રીત ન ક્યારા. હું તારો થઈ જાઉં, તું મારો થઈ જા, બસ એટલું કર્યા. હું તારો થઈ જાઉં, તું મારો થઈ જા, બસ એટલું કર્યા. ચાલ્યો છે તારો હાથ મેં પ્રભુજી, હવે ના છોડું સાથ. ચાલ્યો છે તારો હાથ મેં પ્રભુજી, હવે ન છોડું સાથ. સતી સીતાને લંકામાંથી યુદ્ધ કરી શ્રી રામ બચાવે. ગોકુળ જ્યારે પૂરમાં ડૂબે, ગિરી ઉપાડી શ્યામ બચાવે. મારો રામ તું છે, મારો શ્યામ તું છે. દુનિયાના આ દુઃખોમાં મારો આરામ તું છે. અનાથ બનીને રખડ્યો ઘણો, હવે તું મળ્યો મને નાથ. અનાથ બનીને રખડ્યો ઘણો, હવે તું મળ્યો મને નાથ. ચાલ્યો છે તારો હાથ મેં પ્રભુજી, હવે ન છોડું સાથ. ચાલ્યો છે તારો હાથ મેં પ્રભુજી, હવે ન છોડું સાથ. તારી મારી જે પ્રીતિ છે, મુझने લાગે મીઠી છે. આવી પ્રીતની ગાંઠો જગમાં ક્યાંય ન બીજી રે. મુશ્કેલ ડગર છે, લાંબો સફર છે, ચાહું છું તારો સાથ. મુશ્કેલ ડગર છે, લાંબો સફર છે, ચાહું છું તારો સાથ.
ચાલ્યો છે તારો હાથ મેં પ્રભુજી, હવે ન છોડું સાથ. ચાલ્યો છે તારો હાથ મેં પ્રભુજી, હવે ન છોડું સાથ, હવે ન છોડું સાથ. જય જિનેન્દ્ર. रश्मि में जी.
समझ ले, पाना खुद को तो समझ ले। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। विरातन मां विराजता पूज्य आचार्य श्री चन्नाजी महाराज ने भावपूर्वक वंदन। और वंदन टू पूज्य साध्वी जी श्री शिलापी जी महाराज। On behalf of Singapore Jain Religious Society, Sadhvi ji, we welcome you once again to this second day of our lecture series, specially arranged on the Zoom. I still remember, Sadhvi ji, our trip to Virayathan, where we had the labh of getting very close samagam of Pujya Acharya Shri. અને એમણે એક સરસ નાનકડો ઉદ્ઘોષ આપ્યો હતો, મુસ્કાન સે મોક્ષ. અને that stayed with me all this while, and every time I recollect those memories, those precious moments of how important it is to practically have that smile and muskan. Yesterday we learned about keeping our मन healthy. शरीर के साथ जो मन को भी जय करे, मन ने पण एकदम तंदुरुस्त राखे, तो આપણો મોક્ષ માર્ગ તો એમ જ અડધો કપાઈ જશે. It was very practical, Sadhvi ji, to take us through that journey, and definitely for us to start applying immediately in our life. For today's topic, may I now request Pujya Sadhvi ji to lead us through this journey and continue on the Jivan Anand Hai topic. Thank you. Sadhvi ji, you need to unmute yourself, Sadhvi ji. Am I audible now? Yes, Sadhvi ji, thank you. रश्मि बेन के इतने सुंदर वचन सुनने के बाद में जैसे 20 साल पहले आवाज थी वैसे ही आवाज आज भी है रश्मि की। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के रश्मि, बहुत अच्छा लगा। I request all of you, close your eyes, get connected with your source, the source of infinite happiness, bliss, and unconditional love. That treasure is within you. We keep on looking in the outside world, but the treasure is within you. Om Shrimad Kirvan Chakra Swatamakat Mukut Tati Divya Manik Mala Jyotir Jwala Karala Surita Mukurika Grushta Padar Vinde Vyagrurulka Sahasra Jaladanal Shikha Lolapashankushadhe Om Krim Rim Mantra Rupe Kshapita Kalimale Rakshaman Devi Padme Rakshaman Devi Padme Rakshaman Devi Padme Om Shri Paramatmane Namaha
ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। एक छोटी सी हिंदी प्रार्थना है। कल एक रिक्वेस्ट आई थी कि थोड़ी सी प्रार्थना के साथ आज की बात हम प्रारंभ करेंगे। बहुत सारी बातें जो गद्य में नहीं की जा सकती हैं वो पद्य कह देता है। बहुत सारी बातें हम शब्दों में नहीं कह पाते हैं लेकिन वो गीत कह देता है, संगीत कह देता है। एक साधक के शब्द हैं, बड़े प्रेम से, बड़े मनोभाव से लिखे हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि मोक्ष की चिंता मत करिए आप। मोक्ष तो बाय प्रोडक्ट है, हो ही जाएगा। जीवन आनंदपूर्ण कैसे हो, जीवन कल्याणकारी कैसे हो, जीवन प्रभुमय कैसे हो, ये हमारा लक्ष्य है। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं। तुम्हें आराधूं, आठ प्रहर गुण गाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में अंदर ही खो जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। मैं भगवन हूँ तेरो तेरो, मैं भगवन हूँ तेरो तेरो, चरण कमल सुख पाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। प्रभु बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। बस हर क्षण प्रतिक्षण प्रभु में समर्पित हूँ।
मैं हमेशा कहती हूँ कि हम भगवान परमात्मा आपकी बांसुरी बन जाए, फ्लूट बन जाए हम आपके। मेरा अहंकार, मेरी ईगो, मेरा स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाए। मैं तेरे जो गीत है, तेरे जो संगीत है, वो मैं तेरी बांसुरी बन जाऊं और उसको तू बजाना। बस मैं समाप्त हो जाऊं, बस प्रभु तू रहना। तेरे संगीत, तेरे गीत, तेरी आवाज मैं प्रस्तुत करता हूँ स्वयं को, और बस तू मेरा उपयोग कर, ये मेरी प्रार्थना है। ना चिंता करे किनाल भाई मोक्ष की, मोक्ष तो आ ही जाएगा। जीवन आपका सुंदर होगा, जीवन आपका रसपूर्ण होगा, जीवन आपका प्रभुमय होगा, तो मोक्ष तो आना ही है, मोक्ष तो आना ही है। मोक्ष जाएगा कहाँ? और इसीलिए आज का मेरा जो विषय है, जीवन आनंद है। लाइफ इज ब्लिस, लाइफ इज ब्लिस, जीवन आनंद है। जिंदगी क्या किसी भिखारी का लबादा है, जहां हर घड़ी दर्द के पैबंद लगते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है, जहां हर घड़ी दर्द के थेबड़े लगते जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है, क्या कोई भिखारी का लबादा है, जहां हर घड़ी दर्द के पैबंद लगते हैं। रोते हैं, बिलखते हैं, शिकायतें करते हैं, कंप्लेन करते हैं, डिससैटिस्फैक्शन करते हैं। क्या इसीलिए मिली है ये जिंदगी हमें? भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन, जिसके लिए कहते हैं उत्तर ही है उत्तर, जिसमें उसको उत्तराध्ययन कहते हैं। शब्द इतने सुंदर है, वाणी इतनी सुंदर है कि जीवन को तराश दे वो शब्द सुनकर। इतनी सुंदर है वाणी, उत्तर ही उत्तर है, जिसमें किसान के लिए बोले भगवान, व्यापारी के लिए बोले, स्टूडेंट के लिए बोले, हाउसवाइफ के लिए बोले। और ऐसा नहीं कहा कि जीवन छोड़ के चले जाना, जीवन को सुंदर बनाने का उपदेश दिया भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन में। उत्तराध्ययन कहता है, चत्तारी पर मंगाणी दुल्लहानी हजंतु, माणु सत्तम सुई सत्ता संज मम्मी अवीर्य। कहता है उत्तराध्ययन, चत्तारी पर मंगाणी, चार चीजें दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से लाखों करोड़ों जीवन घूमते हैं, तब कभी कोई पुण्योदय से मनुष्य बनता है। मनुष्य बनने के बाद में माणु सत्तम सुई सत्ता, भगवान की बातों का श्रवण करना बड़ा भाग्य है। सिंगापुर मलेशिया में हजारों लोग होंगे, लेकिन भगवान की बात सुनने के लिए कुछ सैकड़ों ही इकट्ठे होते हैं। बड़ा भाग्य जब होता है तब हम सुन पाते हैं भगवान की वाणी, नहीं तो व्यर्थ ही लगती है ये वाणी। जैसे कल मैंने कहा, किसने देखा मोक्ष, किसने देखी आत्मा, किसने देखी परमात्मा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ऐसा भी समझने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। इसलिए भगवान की वाणी का श्रवण हो जाना बड़ा भाग्य है। और वो वाणी का श्रवण होने के बाद में माणु सत्तम सुई श्रद्धा, उस पर श्रद्धा होना, उस पर विश्वास होना, ये बात भगवान की सही है। हम तो अपनी ही मोहर लगाते हैं हर चीज पर, तो ये भगवान की वाणी है, उस पर श्रद्धा होना कि भगवान जो कह रहे हैं कि तू शरीर नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जो भी तुझे प्राप्त होता है उसका कारण तू है, और ये तेरी यात्रा एक मंजिल तक पहुंच सकती है। इन बातों पर श्रद्धा होना ये भी बड़े भाग्य की बात है, और श्रद्धा होकर उस दिशा में पुरुषार्थ होना वो और बड़े भाग्य की बात है। इसलिए जैन धर्म में जब कोई दीक्षा लेता है तब हम महोत्सव मनाते हैं कि फिर कोई जगह, फिर कोई इस यात्रा में, इस अमृत यात्रा में आगे बढ़ा। तो जिंदगी तो मिली थी, हर बच्चा एक नया उत्सव, एक नया साम्राज्य की संभावना लेकर पैदा होता है। कितने गीत गाते हैं, कितना उत्सव करते हैं जब शिशु का जन्म होता है, लेकिन हर बूढ़ा जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है,
जैसे जैसे जिंदगी के पन्ने उलटते हैं तो हर वृद्ध जो है, हर बूढ़ा शायद शिकायत की गठरी बन जाता है। ये मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। और मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ कि जस्ट इमेजिन दैट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, और उस समय भगवान पूछे आकर, या कोई दिव्य आत्मा, परमात्मा, जो भी आप कहें, कि मैं बस ये अवसर था तुम्हारे पास में, जैसे जीना चाहते थे वैसे जिए, कि कोई रिग्रेट है? ये मिला था अवसर, तो उस अवसर को जैसे तुम जीना चाहते थे वैसे जिए, कि और कैसे जीना चाहते थे इसको? तो ये मान के चलो, ये मान के चलो। इसलिए जैनों में हर दिन संथारा होता है शाम को, रात को, ये समझ के कि बस ये आज अंतिम रात है, तो हम जैसे जीना चाहते हैं ये समझ के कि अंतिम दिन है। तो हर बच्चा एक उत्सव की संभावना लेकर आता है, और हर वृद्ध, हर बूढ़ा शिकायत की गठरी बन जाता है। तो हम जीवन जैसा जीना चाहते थे, जीवन महोत्सव बना सकते थे। तो इसमें जीवन की भूल है या जीवन जीने की भूल है? किसकी भूल है? ये अपॉर्चुनिटी हमें जो मिली थी उसे हम मैक्सिमाइज सुंदर नहीं कर पाए, तो जीवन की भूल है या जीवन जीने की भूल है? आप सिंगापुर में रहते हैं, बड़ी मॉडर्न कंट्री है ये, नए नए गैजेट्स, नई नई मशीन्स, नए नए कंप्यूटर्स, नए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके पास में रहते हैं। जापान भी नजदीकी है। तो जब आप कोई मशीन खरीदते हैं, कोई बड़ा सुंदर नया मॉडर्न गैजेट खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक मैनुअल आता है, और उस मैनुअल को पढ़ कर उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो हम सीखते हैं। और अगर मैनुअल हमें पढ़ना नहीं आता है, तो मशीन को कैसे डिकोड करना है वो भी हमें नहीं आता है। और जो जैसे यंग जनरेशन है, मैनुअल पढ़ लेते हैं, मशीन को उसमें 10 पॉसिबिलिटी है, और अगर हम जानते नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी के साथ में थोड़े 2-4 बटन दबा के उस मशीन को चलाते हैं। और जो मैनुअल एक्सपर्ट है वो मशीन को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कैपेसिटी तक चलाते हैं। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मनुष्य जीवन तो मिला, लेकिन शायद मैनुअल नहीं मिला। इस जीवन को कैसे जीना चाहिए इसका हमें मैनुअल नहीं मिला, और शायद मिला भी तो हमें पढ़ना नहीं आया। इसलिए जीवन तो मिलता है हमें, आनंद उत्सव की पॉसिबिलिटी के साथ में मिलता है। भगवान ने तो इसीलिए दिया ये जीवन हमें, लेकिन हमारा जीवन आनंद उत्सव नहीं बन पाता है, शायद शिकायत की गठरी बन जाता है। अभी तक मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह दे कि यस, आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ। कुछ ना कुछ खिचखिच है ही जीवन में। तो हम मैनुअल पढ़ना नहीं सीखे, इसलिए शायद जीवन महोत्सव नहीं बन पाया। कोई पूछे महावीर को, कोई पूछे बुद्ध को, कोई देखे कबीर का जीवन, जो के त्यों धर दीनी चदरिया, बड़े जतन से उड़ी चुनरिया। एक भी तो दाग नहीं लगा जीवन में। ऐसे जिए महावीर, ऐसे जिए बुद्ध, ऐसे जिए ऋषभ देव, कि उनका जीवन महोत्सव बन गया, महा उत्सव बन गया उनका जीवन। ऐसा जीवन उत्सव बन गया, और कोई इतना उत्सव बना जीवन कि जो आता था साथ चलता था, जो आता था साथ चलता था। अपने ही परिवार के 4 लोगों को अपने साथ में लेके चलना मुश्किल है। अपने ही समाज के, सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी है, अभी तो बड़े पढ़े लिखे और अच्छे लोग आ गए हैं। पहले 22 साल पहले जब मैं आई थी, तब मुझे नगीन भाई बताया करते थे कि एक डिस्कशन में 5 डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। तो एक अपने ही समाज के 4 लोगों को साथ में लेके चलना मुश्किल है। एक परिवार के 4 लोगों को साथ में लेकर चलना मुश्किल है। और महावीर जहां गए मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी छूट जाते थे, पशु तो पशु, वनस्पति भी छूट जाती थी। ऐसा कीमिया, ऐसा आनंद उत्सव था। हम सब ने पढ़ा है
हम सबने सुना है कि जब तीर्थंकर होते हैं, जब कोसों दूर तक बीमारी नहीं होती, कोसों कोसों दूर तक बीमारी नहीं होती, इसका मतलब क्या है? फिर हमने तीर्थंकर को ऐसा बना दिया कि वो तो महामानव, महामानव नहीं है, हमारे जैसे ही है वो, लेकिन इतनी ट्रिमेंडस पॉजिटिविटी है, इतना ट्रिमेंडस उनके जीवन में आनंद है कि दूर दूर तक बीमारी नहीं है, क्योंकि साइकोसोमेटिक है सब कुछ। मन बीमार है तो शरीर बीमार है, और शरीर बीमार है तो मन बीमार है, इंटरडिपेंडेंट है सब कुछ। अभी परसों ही किसी को कोविड पॉजिटिव से वो ठीक हुए, तो मैंने उनको पूछा आप कैसे हैं? बोले आई एम रियली ग्रेट, आई हैव डिफीटेड कोरोना एंड माय लाइफ इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। इतनी पॉजिटिविटी, इतना आनंद कि ठीक है, इसको हम बीट करेंगे, इसको हम फाइट करेंगे और रास्ता इसमें से निकालेंगे। तो जब तीर्थंकर होते हैं तब कोसों दूर तक बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी इतनी जबरदस्त है कि बीमार भी अपनी बीमारी को भूल जाते हैं। तो ऐसे जिए कि उनका जीवन आनंद उत्सव बन गया। लेकिन परिस्थितियां हमसे भी ज्यादा डिफिकल्ट थी उनकी। ऐसा नहीं कि हमारे, कोई मुझे कह सकता है कि उनके तो वो तो तीर्थंकर बनने वाले थे, इसलिए उनके लाइफ सर्कमस्टांसेस वर मच बेटर देन अस। तो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमसे भी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में थे तीर्थंकर महावीर, और सभी तीर्थंकरों का जीवन हम देख लीजिए। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा एडल्टरेशन इज अ सिन, मिलावट करना पाप है। इसका क्या मतलब हुआ कि उस समय लोग मिलावट किया करते थे, इसलिए तो भगवान को बोलना पड़ा एडल्टरेशन इज अ सिन। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो बात पहले तीर्थंकर ने कही, मतलब ऋषभदेव ने कही, न रागो न दोषो, राग भी मत करना, द्वेष भी मत करना, और वही बात 24वें तीर्थंकर ने कही, न रागो न दोषो। तो प्रश्न है कि फिर 24 तीर्थंकर हुए क्यों? 24 तीर्थंकर की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता का सवाल नहीं है, 24 तीर्थंकर होते हैं। तो फिर पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के जो उपदेश है उसमें फर्क क्या? एक आचार्य समंतभद्र हुए जैन इतिहास में, उन्होंने कहा देश कालानुरूपम धर्मम कथयन्ति तीर्थंकर, कि देश और काल के अनुसार तीर्थंकर बोलते हैं। जैसी ऑडियंस, जैसे लोग, जैसी परिस्थिति, ऐसा ही तीर्थंकर बोलते हैं। तो तीर्थंकर आध्यात्मिक नेता के साथ साथ में सामाजिक नेता भी है। ऐसा नहीं होता है कि जो अध्यात्म गुरु है वो समाज से कटा हुआ है, समाज की रीढ़ है आध्यात्मिक नेता। तो भगवान ने कहा एडल्टरेशन इज अ सिन, इसका मतलब लोग उस समय मिलावट करते थे, इसलिए भगवान को कहना पड़ा। भगवान ने कहा अहिंसा परमो धर्म, इसका मतलब लोग हिंसा किया करते थे। भगवान ने कहा अचौर्य व्रत, भगवान ने कहा सत्य व्रत, इसका मतलब लोग चोरी भी करते थे, इसका मतलब लोग झूठ भी बोलते थे, सभी प्रकार के काम करते थे। और करते तो करते थे, लेकिन कोई तीर्थंकर बनने वाला है तो उसको हार्ड टाइम भी देते थे। ऐसा नहीं है कि उनके लिए जीवन एकदम सीधा राजमार्ग था, मुश्किल पगडंडियों से निकले हैं महावीर। लेकिन महावीर और हमारे में बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी। एक राजा अपने राज्य में एक बार घूमने के लिए निकला, और बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे कांटे हैं, और उसके पैर में कांटे चुभ गए और उसको खून आ गया, ब्लड आ गया उसको। राजा तो राजा है, बड़ा गुस्सा हुआ और सेनापति को बुला के पूरे राज्य में से कांटे निकाल दो, मुझे इतनी तकलीफ हो गई है, मैं राजा हूं, मेरा पैर लहूलुहान हो गया, सब कांटे निकाल दो। मंत्री थोड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि राजन, इतने कांटे मैं निकालूंगा तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, आप शूज पहन लीजिए, आप जूता पहन लीजिए, आपको कांटे नहीं लगेंगे। छोटा सा सोल्यूशन था कि इतने कांटे निकालूंगा वो तो जिंदगी लग जाएगी, आप शूज पहन लीजिए जिससे और उसने आपको कांटे नहीं लगेंगे।
शब्द बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगी कि महावीर ने शूज पहन रखे हैं। शूज मतलब कवच पहन रखे। परिस्थितियां उनकी जैसी थी वैसी ही थी, लेकिन परिस्थितियों के साथ उनकी मनस्थिति वैसी नहीं बन जाती थी। कपड़े छोड़ दिए हैं, नग्न फकीर हो गए हैं। राजा के बेटे हैं और राजा उनका नंदीवर्धन भाई भी राजा है, लेकिन अकिंचन सबको छोड़कर अकेले खड़े। एक दिन भी अपने लिए अकेला रहना मुश्किल है, लेकिन महावीर 12.5 वर्ष तक अकेले रहे, खड़े हैं अकेले, ध्यानस्थ है। और एक ग्वाला आकर कहता है कि मेरी गायों का ध्यान रखना, मैं शाम को वापस आऊंगा। सुनते नहीं है महावीर, क्योंकि स्वयं में इतने मग्न है कि बाहर क्या है उससे उनको सरोकार नहीं है। गाय तो चली जाती है इधर उधर, और शाम को आता है ग्वाला, कहता गाय कहाँ है। ना सुबह जवाब दिया है महावीर ने, ना अभी जवाब दिया है। और इतना क्रोध आवेश इस ग्वाले को आप सब जानते हैं, कान में कील ठोकते। यहां तक तो आप सबने सुना है। आगे क्या कहते हैं महावीर? इंद्र उतरते हैं नीचे और कहते हैं भगवान आप बनेंगे तीर्थंकर, ऐसे ऐसे ग्वाले, ऐसे ऐसे लोग आपको परेशान करेंगे, तो आपकी साधना का क्या होगा? तो मैं आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा, मैं पहरा दूंगा, मैं प्रहरी बनूंगा, और आपको तकलीफ ना हो इसका मैं ध्यान रखूंगा। अगर हम और आप होते तो कहते हाँ हाँ ठीक है, 2-4 लोग खड़े रहिए, मैं साधना कर रहा हूं। महावीर ने कहा स्वयं बना हूं स्वयं खोलूंगा, तू ना बीच में। नहीं इंद्र, मैंने बांधे हैं ये बंधन, मैं खोलूंगा, तू बीच में मत बोल। तो जो ये कष्ट मैंने क्रिएट किए हैं, ये कष्ट मेरे पास में लौट के आ रहे हैं, मैंने बंधन खड़े किए, मैं ही खोलूंगा। कौन धार्मिक है? हमारे जीवन में जो जो कृत्य होते हैं उसकी जवाबदारी जो स्वयं पर लेता है वो धार्मिक है। और जो ये कहता है कि मेरे जीवन में जो दुख है उसके कारण तुम हो, उसको महावीर कहते हैं तुम अधार्मिक हो। धर्म और अधर्म की बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, इतनी छोटी सी परिभाषा है कि हमारे जीवन में जो जो घटता है, अच्छा या बुरा, उसके कारण मैं हूं स्वयं। जो इस बात को संपूर्णतः स्वीकार करता है वो धार्मिक है। हम करते हैं स्वीकार। जब अच्छा होता है तो मैंने किया, और खराब हुआ तो तूने किया। जैनों में एक शब्द है सम्यक दर्शन, आपका परिचित शब्द है सबका। और बड़े हम सम्यक दर्शन कब सम्यक दर्शन होगा इसकी हम आस लगाए बैठे रहते हैं। सम्यक दर्शन मतलब आत्मा का पहला अनुभव, मतलब सम्यक दर्शन। और वो अनुभव अनंत आनंद का अनुभव है, इसलिए हम उसके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, उद्देश्य बनाते हैं। तो किसी शिष्य ने पूछा उसके गुरु से कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या? तो गुरु ने कहा सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, स्थित, जरा शास्त्रीय है। जिसमें ये 5 लक्षण होंगे वो सम्यक दृष्टि होगा। जिसके जीवन में समत्व होगा, जिसका सम्यक वेग परमात्मा की तरफ में होगा, जिसमें वैराग्य होगा, जिसमें अनुकंपा भाव होगा, वो सम्यक दृष्टि जीव है। अब जो शास्त्र अभ्यास करते हैं उनके लिए तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों की गलियों में नहीं गुजरे हैं। और मैंने बहुत चिंतन किया कि सादी में सादी, सरल में सरल सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या हो सकती है। मैं कहती हूँ जिसके जीवन में शिकायत नहीं है वो सम्यक दृष्टि जीव है। कब शिकायत नहीं करेंगे आप? जिस दिन हमें ये पक्का श्रद्धान हो जाएगा कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है उसका कारण मैं हूं, तो हम शिकायत क्यों करेंगे? और ये विश्वास होने के लिए हमें आत्मा के अस्तित्व पर श्रद्धान करना होगा। आत्मा के अस्तित्व पर श्रद्धान क्या मतलब? आत्मा के साथ में कर्म और कर्म के साथ में पुनर्जन्म। मैंने व्हाइट बॉल फेंकी है तो व्हाइट बॉल लौट के आएगी। मैंने ब्लैक बॉल फेंकी है तो ब्लैक बॉल लौट के आएगी। तो जो शिकायत नहीं करता है वो सम्यक दृष्टि है, मतलब वो पूरी की पूरी जवाबदारी खुद की खुद लेता है।
जो अहोभाव से जीता है वो सम्यक दृष्टि है, कि जो तूने दिया प्रभु में राजी राजी और राजी हूं, बस कुछ भी दे सकते हैं। अब उसको आप नियति कहिए, उसको कर्म कहिए, परमात्मा की कृपा कहिए, एक ही बात के अलग अलग शब्द है। तो प्रभु तूने जो दिया उसको मैं सर्वात्मना स्वीकार करता हूं। ये सर्वात्मना समर्पण और स्वीकार भाव जिसके पास में है वो सम्यक दृष्टि है। जो अहोभाव से जीता है, प्रसन्न भाव से जीता है, वो सम्यक दृष्टि, और खुद के जीवन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेता है वो सम्यक दृष्टि। तो क्यों महावीर का जीवन महोत्सव बन गया? क्योंकि उन्होंने तय किया कि आपका एक्शन जो भी होगा, मेरा रिएक्शन फिक्स होगा। आपका एक्शन कुछ भी हो सकता है, आपके एक्शन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे रिएक्शन पर मेरा कंट्रोल जरूर है। एक्शन तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो दुनिया का गणित है 2 + 2 4, कि तूने खराब किया, मैंने खराब किया, तूने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, तूने मेरी प्रशंसा की, मैंने तेरी प्रशंसा की, तूने मेरी निंदा की तो मैंने भी तेरी निंदा कर दी। तो ये तो दुनिया का सिंपल गणित है, विच इज ग्रेट गणित। लेकिन जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, उनका ये गणित नहीं होता है। आप निंदा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रेम करेंगे, घृणा करेंगे, मेरा रिएक्शन फिक्स है। ये अध्यात्म का गणित है, ये दुनिया का गणित नहीं है। चाहे चंड कौशिक कितने ही बार विष से डंक मारता है भगवान को, तो भी भगवान का जो करुणा और प्रेम है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। महाक्रोध से लड़ाई क्षमावान की ये कहानी है श्रवण महावीर की। महाक्रोध से लड़ाई क्षमावान की, और चंड कौशिक कहिए, गोशालक कहिए, लेकिन महावीर की करुणा, महावीर का प्रेम उनके लिए कम नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो गटर के पानी में भी पड़ता है, और सुंदर अगर केशर युक्त जल है उसमें भी पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश ये नहीं देखेगा कि गटर का जल है, इस गटर का पानी है, इसमें मैं क्यों प्रकाश दूं। सूर्य का प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश है, प्रभु का प्रेम तो प्रभु का प्रेम है। जो भी सामने आ जाए, अर्जुन माली आ जाए तो ठीक, रोहिणी आ जाए तो ठीक, और गोशालक आ जाए तो ठीक। महावीर का केवल ज्ञान हुआ है रिजुवालुका नदी के तट पर। गोधूली आसन पर बैठे हैं महावीर, और शाम के समय में केवल ज्ञान का अनंत प्रकाश जलमला गया है। हमारे पास में शब्द नहीं है कहने के लिए, हमारे पास में भाषा नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। एक छोटा सा भी आत्मा का अनुभव जब सम्यक दर्शन या पहला इवन औपचारिक सम्यक दर्शन होता है, तो वो जो आनंद है उसको शब्दों में कहना मुश्किल है। और जब केवल ज्ञान हुआ, अनंत प्रकाश उनको प्राप्त हुआ, तो कैसे कहे। अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। और उस शाम को रिजुवालुका नदी के तट पर हुआ है ज्ञान शिखर जी, और शिखर जी से आए हैं भगवान पावापुरी आए हैं। आज भी अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो 6-7 घंटे लगते हैं, और भगवान पूरी रात चले हैं। पूरी रात रिजुवालुका से चलकर वो पावापुरी पहुंचे। क्यों पहुंचे भगवान पावापुरी? क्या जरूरत थी पावापुरी आने की उनको? पावापुरी कारण से आए हैं, रीजन से आए हैं पावापुरी। अब इंद्रभूति गौतम प्रकांड ब्राह्मण पंडित है, 500 शिष्य हैं इंद्रभूति गौतम के, और पावापुरी में वर्चस्व है इंद्रभूति गौतम का। लेकिन रास्ता सम्यक नहीं है, ज्ञानी है, विद्वान है, ब्राह्मण पंडित है, लेकिन रास्ता है हजारों पशुओं को होम देते थे यज्ञ की वेदी पर। उन पशुओं की हिंसा को रोकने के लिए महावीर चले हैं, रिजुवालुका से पहुंचे हैं पावापुरी में, एक बात। और दूसरी, इंद्रभूति गौतम को जगाने के लिए पहुंचे हैं महावीर। महावीर कौन है? महावीर की करुणा क्या है? महावीर का आनंद क्या है? महावीर का जीवन महोत्सव क्या है? उसका इंद्रभूति गौतम को कोई ज्ञान नहीं है।
और इंद्रभूति गौतम was absolutely envious and angry, क्योंकि पावापुरी में उनके अलावा कोई बोला नहीं करता था, सिर्फ इंद्रभूति गौतम ही बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो हजारों लोग उनको ही सुनते हैं। तो आज क्या हो गया? उनकी यज्ञशाला खाली क्यों हो गई है? उनकी यज्ञशाला में कोई आता क्यों नहीं है? तो लोगों ने कहा कि आज कोई तीर्थंकर आए हैं, उनका नाम महावीर है, सब उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। तो गौतम कहते हैं, उनको सुनेंगे, मुझे छोड़कर उनको सुनेंगे, लेट मी सी हू दिस मैन इज। और जितना क्रोध कर सकते थे, जितनी ईर्ष्या कर सकते थे, जितना वैमनस्य कर सकते थे, उसको लेकर पहुंचते हैं महावीर के द्वार समूशरण पर। आप 1 मिनट के लिए रख लीजिए स्वयं को उस स्थान पर, और इतना क्रोध से आंखें लाल और दांत बिछे हुए, और समूशरण के द्वार पर पहुंचते हैं और महावीर कहते हैं, आ भी गया गोई मातू, कब से तेरी राह देख रहा था, शक्कर भी फीकी हो जाए, मिश्री भी फीकी पड़ जाए, ऐसे प्रेम से लबालब तो शब्द महावीर के, और उन शब्दों को सुनकर पिघलते हैं गौतम और वहीं लेते हैं वो दीक्षा। तो उसका एक्शन क्या है गौतम का, और महावीर का रिएक्शन क्या है? हम खड़ा कर ले स्वयं को यहाँ पर। हम दुनिया के गणित में है कि तूने खराब तो मैंने खराब, तूने अच्छा तो मैंने अच्छा, लेकिन गौतम का व्यवहार जो भी हो, कितना नेगेटिव, कितना एक्सट्रीम नेगेटिव, लेकिन महावीर ऐसे ही महावीर नहीं बन गए, ऐसे ही वर्तमान से महावीर नहीं कहते हैं उनको। हमने तो मानव बनाकर उनको मंदिर में बंद कर रखा है। महावीर का जीवन महामानव बनाने के लिए ठीक है, लेकिन महावीर का जीवन ट्रेमेंडस इंस्पिरेशन है हमारा। आप खड़ा कर लीजिए स्वयं को, 1000 बार हम महावीर को सुनेंगे, लेकिन एक बार भी अगर हम सिद्ध कर लेंगे इसको, तो कोई आ गया है एनवी लेकर, कोई आ गया है जेलसी लेकर, कोई आ गया है एंगर लेकर, तो उसका एक्शन ये और हमारा रिएक्शन अगर प्रेमपूर्ण हो जाता है तो हम चले महावीर के रास्ते पर। वो आत्मा छू, आत्मा छू, आत्मा छू, आत्मा जो कहूं तो बहुत आसान है, पर अभी ऐसी सिचुएशन पे जो महावीर का रिएक्शन था, वो रिएक्शन हमारे जीवन में लेके आ जाए तो हम महावीर के यात्रा के सच्चे पथिक बनेंगे। महावीर का जीवन महोत्सव बना, क्योंकि किसी का एक्शन जो भी है, मेरा रिएक्शन फिक्स है। हम कहते हैं कि आपका आचरण क्या है? आप कहते हैं प्रतिक्रमण करना आचरण है, स्वाध्याय करना आचरण है, फिर उपवास करना आचरण, ये सब ठीक, ग्रेट, लेकिन महावीर कहते हैं कि सम्यक आचरण है जब आप इस भाव के साथ में जीते हैं कि मैं कारण हूं, दूसरा कारण नहीं है। इसको हम सम्यक आचरण कहते हैं। ये एक फिलॉसफी है और एक फिलॉसफी का लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन, दो अलग बातें हैं। देखिए, हम फिलॉसफी सुनते हैं, आप हजारों प्रवचन आप सुन चुके होंगे, अलग अलग फिलॉसफीज आपको समझाई जाती है, कही जाती है, लेकिन हम कब धार्मिक होते हैं? जब वो हमारी लाइफ का हिस्सा बनती है, जिंदगी का हिस्सा बनकर वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, तब हम धार्मिक होते हैं। जब तक वो हमारी जिंदगी की चर्निंग हिस्सा नहीं बनती है, तब तक हम धार्मिक नहीं होते हैं, विद्वान जरूर हो जाते हैं। जैसे मैंने कल कहा था, ये प्रयोग है धर्म जीवन। आप एक भी बात सुनेंगे, छोटी सी बात, कि आप चिंतन करेंगे, आप मनन करेंगे कि ये बात जो कही जा रही है, कैन आई अप्लाई दिस इन माय लाइफ, कि जो कुछ भी हो रहा है इसका कारण मेरा शरीर अस्वस्थ है, असाता वेदनी है, मैं काम करने जाता हूं लेकिन व्यवधान आते हैं, कारण हम जब तक हम दूसरों को कारण बनाते रहेंगे तब तक हम अधार्मिक हैं, और जब हम स्वयं को कारण मान लेंगे तब हम धार्मिक हैं। फिलॉसफी एक बात है और फिलॉसफी जीवन में आत्मसात हो जाए वो अलग बात है। हमारा जीवन महोत्सव क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हम हर चीज को पोस्टपोन करते हैं। जब सब छोटे बच्चे थे, सब स्कूल जाते थे, हम भी स्कूल जाते थे, सब कॉलेज में गए, हम भी कॉलेज में गए,
सबने बिजनेस किया, जॉब किया, हमने भी किया, और हम ये सोचते रहे कि छोटे बच्चे हैं, मम्मी का बहुत प्रेशर है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट हैप्पी। कॉलेज में लगता था अब जब डिग्री मिल जाएगी तब हम हैप्पी हो जाएंगे, फिर जब हमें जॉब लग जाएगा तब हम हैप्पी हो जाएंगे, जब सिंगापुर में मैं परमानेंट रहने लग जाऊंगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा, जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। एवरीथिंग इज इन फ्यूचर ओरिएंटेशन। जब मेरा पास ऐसा हो जाएगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा, तब मैं आनंदित हो जाऊंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। और धार्मिक जगत ने भी बड़ा फेवर नहीं किया। धार्मिक जगत ने क्या कहा, जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तब तू आनंदित होगा, जब मोक्ष हो जाएगा तब तू आनंदित होगा। तो धार्मिक जगत ने भी एक प्रकार का पोस्ट हमेशा भविष्य में आंख लगी रहती है कि जब होगा सम्यक दर्शन तब हम होंगे आनंदित। तो मंजिल तो सुंदर है ही, लेकिन मंजिल पर चलने वाला मार्ग भी सुंदर होना चाहिए। सम्यक दर्शन होगा, हम प्रयत्न करते हैं, जिस दिन आप आस छोड़ दोगे उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ऐसा कर करके सम्यक दर्शन नहीं होता। आज सुबह मैं पढ़ रही थी कि परमात्मा का जो राज्य है ना, जब हम मांगते रहते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, और जब हम छोड़ देते हैं तब सब कुछ मिल जाता है। ये बड़ा जबरदस्त कीमिया है। मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप जो साधना कर रहे हैं वो आनंदपूर्ण बनाइए, आप जो काम कर रहे हैं उसको आनंदपूर्ण बनाइए। तो जब हम फ्यूचर ओरिएंटेशन में हम लगे रहते हैं तब हमारा जीवन महोत्सव नहीं बन पाता है। Happiness is not something you will achieve tomorrow. Happiness is an art which you cultivate every moment of your life. It's not something you will get tomorrow. कल परिस्थितियां बदल जाएंगी ऐसा नहीं है, कल कुछ और हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमने सोचा था ये 2 साल पहले पेंडेमिक आ जाएगी, we planned so many things. कल क्या हो जाएगा, परिस्थितियां इससे बेटर भी हो सकते हैं, इससे नेगेटिव भी हो सकते हैं, who knows? Who knows? तो कल जब ऐसा हो जाएगा तब मैं आनंदित। आज आप जहां है वहां है, वहीं पर जो आनंदित हो सकता है उसका जीवन महोत्सव बनता है। हम हॉलीडेज पे जाते हैं ना, सिंगापुर के लोग मलेशिया जाते होंगे, मलेशिया के लोग जापान जाते होंगे, इंडिया आते होंगे, डिफरेंट जगह पर हम हॉलीडेज पर जाते हैं, साथ में कैमरा भी ले जाते हैं, सुंदर सुंदर सीन देखते हैं, फिर उसको क्लिक करते हैं, क्लिक 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 करते हैं। Once I reach home, I will sit quietly and I will see all the pictures. तो वहां जहां गए थे वो इतना सुंदर था, उसको देखने का समय कहाँ है, हम फोटो ही लेते रह गए। और घर आते हैं तो इतना काम है कि वो फोटो देखने का टाइम भी नहीं मिलता। कितनी सीडी खरीदते हो, कितने पेन ड्राइव्स लेके आते हो, कितना सुनने का टाइम मिलता है। जहां हो जैसे हो उस मोमेंट को कंप्लीट समझ लेना। एक कच्छ के एक छोटे से गांव में मैं एक बार गई थी। एक बहुत छोटा बच्चा था, उसने इतनी बड़ी बड़ी मूंछ लगा रखी थी और घुटने के नीचे तक कुर्ता पहन रखा था, और मुझे देखकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई और फिर और भागने लगा, फिर मैं और पीछे गई। तो मैंने पूछा उसको कि क्यों भाग रहे हो, क्यों कुर्ता पहना है इतना बड़ा, इतनी बड़ी मूंछ क्यों लगा रखी है? तो पहले तो शर्माया, फिर बोला कि नहीं, मैं दादा बनना चाहता हूँ, मैं दादा बनूंगा। बेटा क्यों दादा बनोगे? क्योंकि घर में सब दादा का ही सुनते हैं, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। जब दादा आते हैं तब सब खड़े होते हैं, खाना लाते हैं, एवरीथिंग इज फॉर दादा, सो आई ऑल्सो वांट टू बिकम दादा। और दादा को पूछो वो बचपन कैसा था, तो हम पानी में छप छप करके खेलते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, कब उठे, कब खेले, कब खाए। सो वो बचपन को ही लौटा दे मेरे बचपन के वो दिन। तो जो छोटा बच्चा है वो दादा बनना चाहता है, दादा जो है वो बच्चा बनना चाहता है। हम जहां है वहां नहीं रह पाते, इसलिए जीवन महोत्सव नहीं बन पाता। महावीर चिंता नहीं करते थे कि कब केवल ज्ञान होगा,
बस जहां है जिस मोमेंट में वो कंप्लीट है, इसलिए उनका जीवन महोत्सव बन गया। और हम हमेशा पोस्टपोन करते रहते हैं कि जब ऐसा होगा तब खुशी होगी, जब वैसा होगा तब खुशी होगी। जो है वो आज है, अभी है, इसी मोमेंट में। तो जो इस मोमेंट को सुंदर बना सकता है वो जीवन का राजा बनता है। अगर आज बीमार है, अगर आज रुग्ण है, तो कल भी रुग्ण ही होगा, बीमार ही होगा। एक बीमार रुग्ण मां के गर्भ से बीमार रुग्ण बच्चे का ही जन्म होता है, स्वस्थ बच्चे का जन्म नहीं होता है। महावीर को जन्म देने के लिए त्रिशला बनना पड़ता है। ऐसी स्वस्थ, ऐसी सुंदर, ऐसी तेजस्वी नारी, तभी तो महावीर का जन्म होगा। जो बीमार है, जो नेगेटिव है, जिनके अंदर में बहुत सारी शिकायत है, वो क्या महावीर को जन्म देंगे? त्रिशला बनना पड़ता है महावीर को जन्म देने के लिए। लेकिन हमें आता ही कहाँ है? हम तो ऐसे हैं कि स्वर्ग में भी हम शिकायत करते हैं, ऐसी हमारा मेक नेगेटिव है। स्वर्ग में भी हम शिकायत करें। जिस जैन समाज को और सिंगापुर जैन समाज को शिकायत करने का स्पेस कहाँ है? स्वर्ग में तो आप है ही, और कौन सा स्वर्ग होगा? ये जैन समाज 98% हम टैक्स पेयर्स हैं, 99% हमारा लिटरेसी रेट है, और नंबर 1 हम फिलैंथ्रोपिक समाज है। मैं 20 साल से कच्छ में हूं, और जो काम बड़े विनम्रता से मैं कहती हूँ, जो जैन समाज ने काम किया, अद्भुत काम किया है। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, तो एक बार कुछ पाइपलाइन का काम था, तो मैंने कुछ पटेल समाज के लोगों को बुलाया। मैंने कहा ये करना है, यहाँ कच्छ का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पर अमे ना करिए तो બધું જૈનો કરીએ છે, અમે ના કરીએ। बाળकोने भणावવાનું અમે ના કરીએ तो जैनो કરીએ છે। इतनी सुंदर हमारी साख है, नंबर 1 फिलैंथ्रोपी समाज है, तो हम क्या शिकायत करेंगे? हमारा जीवन क्यों महोत्सव नहीं है? स्वर्ग में तो हम है ही, इससे और बड़ा स्वर्ग क्या होगा हमारे पास में? नर्क देखना हो तो मेरे साथ में चलो बिहार, 20 तीर्थंकरों की जो भूमि है। आज भी ड्रेनेज पाइप के नीचे चावल इकट्ठा करते बच्चे मिल जाएंगे आप। चलिए मेरे साथ में नेपाल के स्लम्स में। मेरे को लगता है उन स्लम्स को देखे कि नर्क उससे बेटर होगा, इतनी भयावह सिचुएशन में बच्चे रहते हैं। आइए मेरे साथ में कच्छ के इंटीरियर विलेजेस में। बच्चों को पूछे, शर्ट ना लीधी ना फईनो दीकरो आपसे टाल मने मळसे 2 वर्ष પછી। दूध लग्जरी है, शाक लग्जरी है, फ्रूट ड्रीम है, और नए कपड़े बड़ा चांस मिलता है तब नए कपड़े मिलते हैं। और हम शिकायत करेंगे? हमारा जैसा सुंदर जीवन और किसका हो सकता है? क्यों शिकायत करेंगे? क्यों शिकायत करेंगे? ईसाइयों का एक ग्रंथ हो गया है तालमुड, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। उस तालमुड में लिखा है कि जब जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट आता है, तब जो भी भगवान, ईश्वर, गॉड जो भी है, वो ये नहीं पूछते हैं कि तूने अच्छे अच्छे काम क्यों नहीं किए। वो ये पूछते हैं कि मैंने तुझे आनंदित होने के इतने अवसर दिए थे, तो क्यों आनंदित नहीं हुआ? मैंने तुझे खुश होने के, प्रसन्न होने के इतने अवसर दिए थे, तो प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? मैंने तुझे लोगों की अनुमोदना करने के इतने अवसर दिए थे, तो अनुमोदना क्यों नहीं की तूने? वो ये नहीं पूछते हैं कि तूने अच्छे काम क्यों नहीं किए, वो कहते हैं कि तू खुश क्यों नहीं हुआ, तू आनंदित क्यों नहीं हुआ, तू प्रसन्न क्यों नहीं हुआ। तो भाइयों और बहनों, जीवन एक आनंद उत्सव है, जीवन एक महोत्सव हम बना सकते हैं। हमारे एटीट्यूड, हमारे थिंकिंग, जीवन जीने के तरीके से इस जीवन को आनंद उत्सव बना सकते हैं। 10,000 डेफिनेशंस हुई हैं आज तक धर्म की, 10,000, लेकिन एक डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं करती है। कुछ ना कुछ छूट जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। लेकिन जब तीर्थंकर महावीर से पूछा गया धर्म क्या है, आपसे पूछो धर्म क्या है, तो भगवान ने 3 शब्दों में, छोटे से 3 शब्दों में भगवान ने कहा, वत्तु सहावो धम्मो। वस्तु का अपना स्वभाव धर्म है। वत्तु सहावो धम्मो प्राकृत है, वस्तु का अपना स्वभाव धर्म है।
जो भी वस्तु है उसका जो स्वभाव है वो धर्म है। आप कौन है? शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, मन नहीं, अहंकार नहीं, स्मृति नहीं, भविष्य नहीं। आप कौन है? शुद्ध बुद्ध निरंजन चैतन्य स्वरूप है। आपका जो शाश्वत परिचय यही है, जो निश्चय नहीं में आपका परिचय, आप शुद्ध बुद्ध निरंजन चैतन्य स्वरूप। और आप चैतन्य स्वरूप हो तो आपका स्वभाव क्या है? आनंद स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है, करुणा स्वभाव। आपका स्वभाव ये है। ये बात अलग है कि हमारे स्वभाव पर धूल पड़ी है। जैसे सूरज को बादल ढकते हैं, ऐसे हमारे ही स्वभाव को हमने कर्मों के बादलों से ढका हुआ है, इसलिए हमारे स्वभाव का हमें अनुभव नहीं होता है। हमें अनुभव होता है खचखच का, हमें अनुभव होता है शिकायत का, हमें अनुभव होता है और बहुत सारी चीजों का। लेकिन आपका जो मूल स्वभाव है, रियल स्वभाव है, वो प्रेम, करुणा, आनंद और ज्ञान। तो 24 घंटे में जब जब ऐसा हुआ कि बिना कारण से आप प्रेम पूर्ण हुए, तो आप अपने स्वभाव के नजदीक आए। बिना कारण के आप लवफुल हुए, बिना किसी अपेक्षा के लिए आपके अंदर से करुणा की धारा बह गई, तो आप आनंदित हुए और आप धार्मिक हुए। आप तब उन क्षणों में ही आप धार्मिक हुए, जिन क्षणों में बिना किसी कारण, आप कहते हैं ना निष्काम करुणा, कि बिना किसी कारण किसी के लिए कुछ करने का मन हो जाए। हम तो संसार के गणित में रहते हैं ना, कोई किसी के लिए कुछ करेंगे जब कुछ कारण हो। जब बिना कारण किसी के लिए कुछ करने का मन हो जाए, तो समझना आपके अपने स्वभाव से आपका परिचय हुआ। सबको गुस्सा आता है कभी कभी। कितनी देर गुस्से में रहते हैं? मान लीजिए कुछ घर में अनबन हुई, कोई कारण हुआ, तो कितनी देर गुस्सा आता है? थोड़ी देर। फिर लगता है कि कोई बुला ले, मिच्छामि दुक्कडम कह दे, खत्म हो जाए बात। तो हम कारण के क्रोध सब, जैसे हम पानी गर्म करते हैं स्टोव पर, गैस पर, फिर गैस को टर्न ऑफ करते हैं तो पानी धीरे 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 ठंडा हो जाता है। इसका मतलब पानी का स्वभाव उष्णता नहीं है, हीट नहीं है। पानी का स्वभाव जो है वो शीतलता है, लेकिन बाहर के उस एलिमेंट के संस्पर्श के कारण, टच के कारण, संसर्ग के कारण वो पानी गर्म हुआ, और जब हमने उसको हटा लिया तो पानी ठंडा हो गया। इसका मतलब पानी का स्वभाव जो है वो शीतलता है। अग्नि के स्पर्श से, अग्नि के संसर्ग से वो पानी गर्म हुआ, फिर वो अग्नि हट गई तो पानी अपने वापस स्वभाव में आ गया। तो हमारा स्वभाव तो प्रेम है। किसी कषाय से, किसी कर्मोदय से हम क्रोधित होते हैं, लेकिन जब वो कारण समाप्त होता है तो वापस हम शांत हो जाते हैं। तो हमारा स्वभाव प्रेम है, हमारा स्वभाव करुणा है, हमारा स्वभाव ज्ञान है। और जब जब जिन जिन कारणों से हमें अपने स्वभाव का परिचय होता है, उतने उतने अंश में हम धार्मिक होते चले जाते हैं। तो आपको देखना है 24 घंटे में कितने क्षणों में हम धार्मिक हो। जब जब आपका अपने से संपर्क होता है, अपने से परिचय होता है, अपना अनुभव होता है, उतने उतने अंश में हम धार्मिक होते चले जाते हैं। कल मैंने आपसे शरीर की बात करी, मन की बात करी। तीसरी एक और परिधि हमारे अंदर में भावों की परिधि है। मैं आपसे पूछूं कि लग्न किया ना आपने, तो शादी करना बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। लॉजिक से करते हो कि भाव से करते हो? मैंने दीक्षा ली है, मेरे से कोई पूछे कि आपने लॉजिक से दीक्षा ली है कि भाव से दीक्षा ली? दीक्षा लेने का कोई लॉजिक नहीं होता है। दीक्षा तो अज्ञात में छलांग है, परमात्मा की तरफ छलांग है। व्यक्ति को पता नहीं क्या होगा, लेकिन उस अज्ञात में छलांग लगाता है व्यक्ति। भाव से होते हैं। जिंदगी के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण निर्णय भाव से होते हैं, और जो बहुत लॉजिक लगाते हैं ना, वो बड़ी छलांग भी नहीं लगा पाते। तो महावीर ने कहा कि बड़ी आपने 12 भावनाएं भी पढ़ी होंगी, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट भाव है हमारे भीतर में, वो मैत्री का भाव। इसलिए भगवान का जब निर्माण हो रहा था, पावापुरी में निर्माण हुआ। पावापुरी में पहली देशना हुई,
लाखों लाख लोग इकट्ठे हो गए कि अब तो चले जाएंगे भगवान। 30 वर्ष तक लगातार बोले हैं, 30 वर्ष तक, और फिर भी लोग इकट्ठे हैं, और कुछ दे दो और कुछ दे दो। तो लोगों ने कहा कि एक अंगुली पर लिख सके छोटी सी एक बात दे दो जो हम आत्मसात कर लें। सुनने जैसी बात कही थी महावीर ने। नहीं कहा दिगंबर बनना, नहीं कहा श्वेतांबर बनना, नहीं कहा आत्मा की बात करना, नहीं कहा आत्मा को ढूंढना, ना प्रतिक्रमण की बात करी, ना सेवा पूजा की बात करी, ना उपवास की बात करी। जानते हो क्या कहा महावीर ने? अंतिम क्षण में, और जब व्यक्ति अंत में जो बोलता है ना, उसके जीवन का निचोड़ होता है। इतना याद रखना, स्मरण रखना ये बात। तो अंत में बोले महावीर, मैत्तिम भुवे सुकप्पय, कि लेट फ्रेंडशिप बी योर रिलीजन। अंत में बोले महावीर, जो अंतिम संदेश था, मैत्तिम भुवे सुकप्पय। महावीर ने कहा कि मित्रता तुम्हारा धर्म हो, मित्रता तुम्हारा धर्म हो, ये कह के गए हैं। और उस मित्रता मतलब सबके साथ में मित्रता। लेट फ्रेंडशिप बी योर रिलीजन। आप देखिए, कुछ नहीं कहा, प्रकृति से फ्रेंडशिप, पशुओं से मित्रता, 1 सेंसेस, 2 सेंसेस, 3 सेंसेस, सबसे मित्रता, सबसे मित्रता। और अगर, और कहा महावीर ने, अगर मित्रता साध लेते हो तो सब कुछ सध जाता है। और जैसे मैंने अभी कहा था कि भगवान जहां गए वहां लोगों को मित्र बना लिया, पशु भी मित्र बना लिए। और हम तो बड़े पेंटिंग बनाते हैं कि समोशरण में शेर भी है और गाय भी है और बकरी भी है और चीता भी है। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? जितने हमारे मंदिर हैं उन सब में लांछन भगवान के पशु है। ऋषभ देव का लांछन है बैल, महावीर का लांछन है सिंह, पार्श्वनाथ भगवान का लांछन है सर्प। और जब आप मंदिर में जाते हो तो प्रणाम करते हो, तो तीर्थंकर से पहले पशुओं को प्रणाम करते हो, क्योंकि मंदिर में जब चलते हो तो लांछन तो नीचे है भगवान के, और उनको प्रणाम करते हो पशुओं को। इतना पशुओं के प्रति प्रेम, इतना वनस्पति के प्रति प्रेम, सबसे प्रेम, सबसे मित्रता। और पूछते हैं साधक कि भगवान, मैं भी चाहता हूं सब मेरे मित्र बने, तो मैं क्या करूं इसके लिए? छोटी सी बात, छोटी सी बात। नहीं मोक्ष की चिंता करें, मोक्ष हो जाएगा, अच्छी बात है, हो ही जाएगा। लेकिन भगवान ने एक छोटी सी बात कही कि आप जो भेजते हो, ये दुनिया इको है, सिंपल है भाइयों और बहनों। भगवान की बात सिंपल है, भगवान की बात सरल है, और उसको जितनी सरलता से स्वीकार करते हैं उतना जीवन आनंदपूर्ण भी बनता है। तो भगवान ने कहा, जो तुम भेजते हो वो लौट कर आता है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, हर दिन सुबह भेजना मैत्री का संदेश पूरी दुनिया, हर दिन मैत्री का संदेश भेजना कि मेरी सचमुच में किसी से शत्रुता नहीं है, मैं सबका मित्र हूं और सब मेरे मित्र हैं। सब मेरा किसी से आप बोलते हो ना, मैत्तिम भुवे सुकप्पये वैरम मज्जम न केण। हर संवत्सरी को तो बोलते हो, वैरम मज्जम न केणई, you mean it। वैरम मज्जम न केणई, कि मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। मैत्तिम भुवे सुकप्पये वैरम मज्जम न केणई, मतलब किसी से मेरा वैर नहीं है, किसी से मतलब किसी से वैर नहीं। और जब ये जीवन में आत्मसात हो जाएगा, चरितार्थ हो जाएगा, तो मोक्ष तो आना ही आना है। इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, हूँ आत्मा छू, बोलिए बोलिए, जरूर बोलिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना हर दिन सुबह सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके। लेट फ्रेंड मैत्तिम भुवे सुकप्पये, सबसे मेरी मित्रता, वैरम मज्जम न केणई, किसी से मेरी शत्रुता नहीं। ये बात आपके जीवन में फलनी घटनी शुरू हो जाएगी। हम जो भेजते हैं वही हमारे जीवन में लौट के आता है। हम जो, ये दुनिया रेसिप्रोकेशन है, इको है। हमने भेजा मित्रता का समय। कहती हूँ क्या कर रहे थे महावीर 12.5 वर्ष तक? 12.5 years he was standing। 5 महीने नहीं खाया। और मैंने PhD किया और कई 6 महीने का, 1 साल का मौन किया मैंने दीक्षा के बाद में। आज मेरी दीक्षा हुई, उसके अगले दिन मैंने 1 साल का पूरा मौन किया।
एक छोटी सी हट थी जिसमें मैं रहा करती थी, और मैं सोचती रहती थी कि 12.5 वर्ष तक महावीर ने क्या किया होगा। महावीर 12.5 वर्ष तक, हमने कहा ध्यान किया, हमने कहा उपवास किया, ये सब तो शब्द रटे रटाए बोल दिए, but what he was doing for 12.5 years, in my understanding, he was just sending message of love and friendship to all. फिर वो लौट के आई, फिर वो लौट के आया, और धीरे 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 महावीर स्वयं प्रेम बन गए, धीरे धीरे महावीर स्वयं करुणा बन गए। महावीर और करुणा अलग नहीं है, महावीर और प्रेम अलग नहीं है, सिनोनिम है। महावीर प्रेम बन गए, महावीर करुणा बन गए, क्योंकि भेजते रहे संदेश, भेजते रहे संदेश, और संदेश लौट के आ गए। फिर शेर भी बैठा, चीता भी बैठा, अंदर से वायलेंस समाप्त हो गया, 100% समाप्त हो गया। तो क्यों शेर क्रूर होगा, क्यों चीता क्रूर होगा, क्यों सांप क्रूर होगा? महावीर ने कहा भेजो संदेश मैत्री का। इसलिए नेचर जो है ना, हम लोग ऐसा देखते हैं ना, हर तीर्थंकर या तो पर्वत की चोटी पर बैठ के कोई तीर्थंकर हुआ है, सागर के किनारे कोई तीर्थंकर हुआ है, खाली बल्लीनाथ है जो महल में बन गए हैं तीर्थंकर। क्योंकि प्रकृति जो नेचर है बड़ा संदेश है हमारे लिए। देखिए पानी बरसता है, सूर्य देती है किरणें, चंद्रमा देती है शीतलता, पृथ्वी देती है अनाज। बिल आता है आपके पास? कभी दिया? कभी आपने सूर्य का बिल दिया? आपने कभी? चंद्रमा ने कभी आपको इनवॉइस भेजा? इतना सुंदर बरसात का पानी कभी हमको बिलिंग हुआ? प्रकृति देती जाती है, देती जाती है, सर्वसहा लुटाती जाती है। तो अगर प्रकृति इतना सेल्फलेस हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं सेल्फलेस? क्योंकि हम भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। तो जैसे प्रकृति सेल्फलेस होती है, वो हमारे लिए संदेश है कि हम भी ऐसा सेल्फलेस बनने का प्रयत्न करें। आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा, भेजिएगा रोज प्रेम के संदेश, भेजिएगा रोज मैत्री के संदेश, और संदेश आपके पास में लौट के आ जाएंगे। मैंने एक्सपेरिमेंट की है मेरी लाइफ में। कुछ रिलेशनशिप स्ट्रेट नहीं होते हैं, सबकी जिंदगी में ऐसे रिलेशन है जो स्ट्रेट नहीं होते हैं, और जितना आप कोशिश करते हैं उतने बिगड़ते हैं। आप जरा साइलेंट एफर्ट करिएगा, भेजिएगा ये संबंधों के लिए, वो संदेश भेजेंगे, और आपके विचार, आपके भाव जहां भेजते हो वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद में वो सुंदर भी होते हैं। हमारे मन की, हमारे विचारों की, हमारे भावों की क्या ताकत है हम भी नहीं जानते। महावीर ने चंड कौशिक पर कृपा की, तो भगवान कहते हैं कि मित्रता का भाव करना, करुणा का भाव करना। चंड कौशिक पर कृपा करी, गोशालक पर कृपा करी, और हमें लगता है करुणा मतलब हम शिखर जी गए, 5 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया, किसी को 100 रुपया पकड़ा दिया, पलिताना में 500 रुपया, ये करना है? ये तो ठीक है ही करना। ग्लान को, पीड़ित को, जो गरीब है उसके लिए करुणा करना तो करुणा है ही। लेकिन जो विपरीत चलता है हमसे, उस पर भी करुणा करना, वो करुणा है, वो करुणा है। गोशालक तेजोलेशा छोड़ता है, तो भगवान थोड़ी तेजोलेशा छोड़ते हैं, भगवान फिर भी शीतलेशा छोड़ते हैं। तो इसको करुणा कहा है। बुद्ध को दिया किसी ने जहरीला भोजन, बड़ी लंबी कथा है, टाइम नहीं है, और वो भोजन खा के विषाक्त भोजन, कुकुर मुत्ता जिसे बोलते हैं ना आप, मशरूम की सब्जी खाकर बुद्ध की मृत्यु हुई। आनंद ने कहा कि मारो इसको जिसने कहा नहीं, आप गांव में डुगडुगी पिटवाना कि जिसने बुद्ध को अंतिम भोजन दिया वो महाभाग्यवान है। जिसने जीवन ले लिया उसके लिए करना, उसके लिए अपार कृपा। तो ये सारे गुण जो है वो एक्सपेरिमेंट करने जैसे। भगवान ने कहा अहोभाव से, ग्रैटिट्यूड, प्रमोद भाव से जीना। प्रमोद भाव को तुम एक्सपैंड करना, उसको तुम उस पे तुम वर्क करना। और प्रमोद क्या है? प्रमोद क्या है? ग्लास आधा भी खाली है, आधा भरा भी है, जो है उस पर आनंदित रहना। भगवान ने कहा इस भाव को तुम एनहांस करना, मल्टीप्लाई करना, इस पर मेहनत करना। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम,
और जो नहीं आपके जैसे नहीं बनती है ना, तो मध्यस्थ हो जाना, तटस्थ हो जाना, बोलना मत। और हमारे बोलने से कितने महाभारत हुए हैं, इतिहास तो साक्षी है। क्या जरूरत थी द्रौपदी को कहने की अंधों के बेटे अंधे? चुप भी तो रह सकती थी। पता था कि रिलेशनशिप इतने सेंसिटिव है, पता था पांडवों और दुर्योधन के रिलेशनशिप इतने सेंसिटिव है, पता था कि दुर्योधन कौरवों को पांडवों की बात नहीं अच्छी लगती, पांडवों को कौरवों की बात नहीं अच्छी लगती। इतना सेंसिटिव रिलेशन है, उस सेंसिटिव रिलेशनशिप में इतनी आंख डालने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी कहने की अंधों के बेटे अंधे? ऐसा चुभा कि महाभारत पर जाकर वो खत्म हुआ। तो जरा समझना बोलते समय, जरा ध्यान रखिए बोलते समय कि हमारी बात से ऐसा न हो जाए कि महाभारत खड़ी हो जाए। मध्यस्थ भाव, हम जो रिलेशनशिप सेंसिटिव है उसमें कुछ भी कहा जाए तो चुभ ही जाता है। जब रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है ना, तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, बुरा नहीं लगता है। और जब रिलेशनशिप सेंसिटिव होते हैं, जब थोड़ा भी कहा जाए कि ये हैंकरचीफ यहाँ से यहाँ रख दो, क्यों कहा मुझे? हमेशा मुझे ही कहा जाता है, जब देखो मुझे ही काम कहा जाता है। और जब रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, अरे देना रुमाल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां महावीर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जहां सेंसिटिव है, विपरीत मध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो, जहां विपरीत बुद्धि के लोग हैं, अलग डायरेक्शन के लोग हैं, जहां नहीं स्वभाव मिलता है, वहां तटस्थ हो जाना, चुप हो जाना। तो भाई और बहनों, ये धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, ये जागने का मार्ग है, जीवन को सुंदर बनाने का मार्ग है, एक सुंदर अवसर है, वो सुंदर अवसर है जिस पे धार लगाने का ये मार्ग है। जिंदगी तो सबकी पूरी होती है, जो आया है 100%, कोई चीज 100% हो ना हो, लेकिन 100% डेथ तो है ही। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी ने जन्म लिया और उसको मृत्यु ना आई हो। 100% मृत्यु है। तो जीवन है तो सबका पूरा होगा ही। लेकिन जैसे अब मैं कहती हूँ, आपको सिंगापुर से मलेशिया जाना है, आपके पास में मर्सिडीज गाड़ी है, आपके पास में स्कोडा है, मालूम नहीं कौन कौन सी अच्छी अच्छी गाड़ियां होंगी। अब वो गाड़ी से सिंगापुर से मलेशिया जाएंगे तो गाड़ी डेंट लग के भी पहुंच सकती है, धक्के मार के भी पहुंच सकती है, रफ ड्राइविंग करके भी पहुंचेंगे तो सही मलेशिया, ऐसी बात तो नहीं पहुंचेंगे। और कोई सफर ऐसा भी हो सकता है, वो सुहाना सफर हो सकता है, सुंदर हो सकता है, बड़े प्लेजेंटली, गाड़ी को भी डेंट नहीं लगा, आप भी सुख से पहुंच गए। तो जीवन तो सबका ही पूरा होगा, लेकिन हमको कैसे वो जीवन जीना है, कैसे वो जीवन पूरा करना है, ये चॉइस हमारी है, ये चॉइस हमारी है। उसको आनंदपूर्ण ढंग से करना है, उसको रोते रोते करना है, हो तो रखड़ू चू, हो तो पापी चू, ये कह के करना है, या ये कह के करना है कि भगवान धन्यवाद तेरा इतना सुंदर जीवन तूने दिया, इस सुंदर जीवन को और मैं सुंदर बनाने का प्रयत्न करूं। मैं भगवान महावीर का मार्ग स्व पर कल्याण का मार्ग है, तुम्हारा भी विकास और तुम्हारे साथ दूसरों का भी विकास। इसलिए महावीर ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा विकास। देखिए जैनों ने जितने काम किए हैं, अनबिलीवेबल काम किए हैं, और इसी भाव से, नहीं तो महावीर ने संघ की स्थापना क्यों की? 12 वर्ष तक थे, फिर 30 वर्ष और अकेले रह जाते। नहीं, दास प्रथा से मुक्त किया, स्त्रियों को मुक्त किया, स्त्रियां बाजार में बेची जाती थी उनको मुक्त किया, जातिवाद से मुक्त किया उन्होंने। इतने सारे सुंदर काम किए उन्होंने, क्योंकि स्व पर कल्याण का रास्ता, तुम्हारा भी कल्याण और तुम्हारे साथ भी दूसरों का भी कल्याण। तो अपने लिए भी जीना, और जो हो सके तब दूसरों के लिए भी जीना। हो सकता है आपकी छोटी सी अमृत की बूंद किसी के लिए जिंदगी बन जाए, हो सकता है आपका छोटा सा सहयोग किसी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट થઈ जाए, हो सकता है आपके छोटे से सांत्वना के शब्द किसी के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। तो अपना भी विकास करना, अपने लिए भी अच्छे से रहना, अपने लिए भी मित्रता के संदेश के साथ में रहना, और जितना हो सके दूसरों के कल्याण के लिए भी काम करना, यही महावीर का आदर्श है, यही जैनों का आदर्श है, और यही हम सबका आदर्श है।
और प्रेम से आपने मेरी बातें सुनी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहती हूँ। और अब किसी को प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। Mathena Mandami Sadhuji. हाँ जी। I will now open the floor to anyone who has any questions. Please take full lap to ask questions. I can see some questions coming in already. We will spotlight Rashmi Ben first. Rashmi Ben, you can unmute yourself. भरत भाई ने भी प्रश्न पूछे। Bharat Bhai is next in line. Yes. Yes. Rashmi Ben, carry on. मथेन मंदामी हाँ बोलो रश्मि बेन बोलो। जैसे कि आपने अभी बताया कि तटस्थ रह जाना, चुप रह जाना, पर जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग तो संसार में बैठे हुए हैं, तो कई बार ऐसे भी होता है कि हाँ हमारा धर्म है, स्वभाव है कि तटस्थ रहना, चुप रहना, पर यदि नहीं बोला तो शायद मुश्किल हो जाएगी, शायद एक अंदर एक गिल्टी फीलिंग रह जाएगी कि क्यों नहीं बोला था, सब कुछ जैसा है वैसे चलते रहने दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो रश्मि, ये चॉइस तुम्हारी है। सबसे हमारा यार्डस्टिक क्या है कि तुम्हें हैप्पी रहना है, ठीक है। हमारा यार्डस्टिक है कि नो मैटर व्हाट आपको आनंदित रहना है, आपको हैप्पी रहना है, ठीक है। अब आप ये सोच लो कि बोलने के बाद ज्यादा खचखच लगती है कि बिना बोले ज्यादा खचखच लगती है। बोलने के बाद में पश्चाताप हुआ कि अरे क्यों बोल दिया, ना ही बोलते तो अच्छा रहता, तो फिर बोलने की जरूरत क्या है, पहली बात ये। फिर आपके बोलने से सामने वाला व्यक्ति सुधर जाएगा तो आप बोलिए, लेकिन आपको भड़ा से निकालने की यस मुझे क्यों बोला इसलिए मुझे बोलना ही है, तो फिर आप भगवान के रास्ते पे नहीं है रश्मि जी। जैसे मैंने पूरे लेक्चर में कहा कि दुनिया का गणित तो ऐसा है कि तूने बोला, मैंने खराब किया, तूने खराब किया। हमारा गणित ये है कि तुमने जो भी किया मैं इस रास्ते पे चलूंगा। तो अगर आपको लगता है कि बोलने से स्थिति बेटर हो सकती है तो बोलिए, और आपको लगता है कि नहीं बोलने से स्थिति बेटर होगी तो मत बोलिए आप, राइट। तो लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि हमको लगता है हमने बोल दिया इसलिए हम जीत गए। मैं कहती हूँ जो चुप रह जाता है वो जीतता है। देखिए आपके घर में 3 लोग हैं मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपके 2 बच्चे ही हैं, ठीक है। एक बच्चे को आपने बहुत डांटा और उसने भी सामने से बहुत ही मम्मी तू ऐसी है, तू बोलती रहती है, तू खराब है, उसने भी 4 बातें आपको बोल दी, ठीक है। और दूसरा आपका बच्चा है जिसको आपने डांटा और उसने कुछ नहीं बोला और बाद में बोला मम्मी सॉरी। तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर किसके लिए होगा, पहले बच्चे के लिए कि दूसरे बच्चे के लिए? डेफिनेटली दूसरे बच्चे के लिए होगा ना, कि उसने मेरी बात को इतने प्रेम से सुनी और उसके बाद सॉरी भी बोला। तो हमेशा बोल के ही हम समाधान ढूंढते हैं ऐसा नहीं है रश्मि जी, बिना बोले भी समाधान आते हैं, बिना बोले भी समाधान आते हैं। डिपेंड करता है कि आप किसको बोल रहे हैं, आपकी बात को वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे नहीं समझ रहे, इस पर डिपेंड करता है रश्मि जी। तो ये बड़ा इसका एक प्लेन आंसर नहीं हो सकता है कि हम बोले या ना बोले। 10 बार मत बोलिए ना, 10 बार मत बोलिए। तो हमेशा बोलने से समाधान आ जाएगा जरूरी नहीं है। हाँ, फिर बोलने का तरीका क्या है, कब कैसे बोलना है, कैसे समझाना है, इस पे सब डिपेंड करता है रश्मि जी, राइट। तो लेकिन मेरा अनुभव ऐसे कहता है कि अगर रिलेशनशिप सेंसिटिव है ना तो हर बात चुभती है, और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो कुछ भी कह सकते हैं, राइट। जिनके साथ में हमारा संबंध एकदम डेलिकेट है ना, जैसे आप हिंदुस्तान में मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, रिलेशनशिप कितना सेंसिटिव है। बेटी कुछ भी कह जाती है तो मम्मी को चुभता नहीं है, वही बात अगर डॉटर इन लॉ कहती है तो मम्मी को चुभ जाती है, कारण कि रिलेशनशिप सेंसिटिव है, राइट। मम्मी बेटी आके बोले कि मम्मी कैसी साड़ी पहन रखी है, अरे बेटा अभी बदल देती हूँ। और अगर बहू आके बोलती है कि मम्मी कैसे कपड़े पहन रखे हैं तो सासू को अच्छा नहीं लगता है। तो रिलेशनशिप जहां सेंसिटिव होते हैं वहां पे बड़े संभाल के शब्दों को बोलना, और जहां रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है वहां कुछ भी बोलो तो भी चलता है, राइट। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आपके संबंध कैसे हैं उसको देखकर आपको बोलना चाहिए,
अगर आपके सामने वाले की तैयारी है सुनने की तो बोलिए, नहीं तो द्रौपदी जैसे महाकांड हो जाते हैं, बोलने की जरूरत थी नहीं उसको। सबको पता था कि दुर्योधन को चुभने ही वाला है, इतनी तो जोर से हंसी और फिर इतने सारे उसने तीखे शब्द बोल दिए, तो दुर्योधन को क्या होने वाला था। मुझे तो बिल्कुल दुर्योधन की गलती नहीं लगती, मुझे 100% द्रौपदी की गलती लगती। चुप नहीं रह सकती थी वो, जरूरत क्या थी उसको बोलने की उस समय में। और फिर इतनी ज्यादा सरकास्टिकली वो हंसी है, ऑलरेडी उन लोगों के बीच में इतनी टेंशन है पांडवों और कौरवों के बीच में, और फिर ऐसे उसने शब्द बोल दिए तो उसने टेंशन को एकदम एग्रीवेट कर दिया है। तो मैं कहती हूँ कि जब अच्छे संबंध ना हो तब चुपचाप रहना चाहिए। आप प्रशंसा करेंगे, देखो इसका कोई स्वार्थ होगा इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो कभी तो अच्छे बोलते ही नहीं है, इसलिए हर चीज में आप फंसते हैं, इसलिए आप ना बोले तो बेटर है रश्मि जी, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भरत भाई आपका। Jai Jinendra Sadhvi ji. हाँ जी बोलिए भरत भाई। In the last message of Bhagwan, you mentioned about his message on friendship, right, which was given by him to the world. So can you just guide us a little bit more on how we can implement it better in our lives? मैंने भरत भाई एक तो टिप दिया ही आपको। अगर आप देखिए, दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में। एक तो जो है जो मोक्ष की यात्रा करना चाहते हैं, मतलब जो ऐसा मानते हैं सम्यक दर्शन इसके पीछे लगे रहते हैं लोग, एक तो इस प्रकार के लोग। दूसरे एक प्रकार के लोग हैं जो अपने जीवन को सुंदर बनाते बनाते इस दुनिया को भी सुंदर बनाना चाहते हैं, राइट। तो एक तो वो एक्सट्रीम है। तो महावीर ने कहा, जाते जाते बोला, लेट फ्रेंडशिप बी योर रिलीजन, और उसके लिए उन्होंने टिप्स भी दिए, जिसमें से एक टिप मैंने कहा जो मेरा एक्सपेरिमेंटल टिप है कि व्हेन यू सिट मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल, और आप आंख बंद कर कहें मेत्ती भुए सुकप्पय वैरम मज्जम न केणे, कि मेरी किसी से शत्रुता नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। तो जितनी स्ट्रांगली आप वो मैसेज भेजते हैं भरत भाई, उतनी स्ट्रांगली वो मैसेज आपको रिटर्न आता है, और धीरे 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 आप फील करेंगे कि रियली आपके किसी के साथ में कोई एनिमोसिटी नहीं है। एवरीबडी इज योर फ्रेंड बिकॉज यू आर फ्रेंड टू एवरीबडी। फिर महावीर ने वो बात प्लांट बीइंग तक लेके गए, उन्होंने फिर एनिमल बीइंग तक भी लेके गए, दैट यू बिकम काइंड ऑफ करुणा इन योरसेल्फ, यू बिकम कंपैशन इन योरसेल्फ, पहली बात। दूसरी बात महावीर ने कही, जैसे मैंने कहा, नेचर इतनी सेल्फलेस है, so you try to become selfless like nature, which is very very difficult to do, भरत भाई, easy नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी एक्शन है वो सेल्फिश एनर्जी, उसी से हम मोटिवेट होते हैं, राइट। हमें सेल्फलेस पता ही नहीं है कैसा होता है, तो नेचर जो है उसका एक बड़ा एक एग्जाम्पल है। तीसरी जो बात महावीर ने कही कि do something every day for which you do not expect any return. Something you do every day for which you have no expectation whatsoever. आपकी वाइफ को भी, कीर्तिदा को भी पता नहीं लगना चाहिए, that act of kindness every day, which will enhance your kind of, I wouldn't say respect, but your kind of gratitude for yourself only. ऐसा कोई act of kindness, act of love, act of selflessness every day, which will enhance your friendship sector within you very beautifully. तो ये जो मित्रता का केंद्र है, इस पे काम करना पड़ता है भरत भाई। जैसे मैं कहती हूँ कि महावीर सबको मित्र बना सके, और वो संभावना हमारे भीतर में भी है, वो बीज हमारे भीतर में भी है, लेकिन हमारा बीज रह जाता है और हम विदा हो जाते हैं। और हमारे जो रिचुअल्स है ना, दे आर नॉट वेरी कंड्यूसिव टू एनहांस द फ्रेंडशिप सेंटर। जैसे हमने कहा, हमने बहुत सारे रिचुअल्स बनाए हैं, तो रिचुअल्स समटाइम दे आर कनेक्टेड टू आवर इनर वर्ल्ड एंड समटाइम दे आर नॉट कनेक्टेड टू आवर इनर वर्ल्ड, और समटाइम्स द वे वी प्रैक्टिस आवर इनर दिस रिचुअल्स मे नॉट बी कनेक्टेड टू आवर इनर वर्ल्ड। तो हमारी जो डे टू डे प्रैक्टिसेस है, उससे हम इंटरकनेक्शन कभी ला सकते हैं, कभी नहीं ला सकते हैं। तो ये जो महावीर के भीतर में मैत्री केंद्र है, वो 100% एक्सपैंड हुआ, और हमारा जो
जो बीज है वो बीज रह जाता है और हम विदा हो जाते हैं। पूरी जिंदगी हम धार्मिक अभ्यास करते हैं, पूरी जिंदगी हम प्रवचन सुनते हैं, पूरी जिंदगी हम लेक्चर्स में जाते हैं, लेकिन हमारा वो फ्रेंडशिप सेंटर शायद एक्टिवेट नहीं हो पाता है, करुणा सेंटर एक्टिवेट नहीं होता, हम जैसे हैं वैसे रह जाते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूं भरत भाई कि महावीर को किसी से प्रेम करने के लिए एफर्ट करना पड़ता था कि इट वाज नेचुरल? It was natural, right? It was not an effort for Mahavir to love somebody. It was not an effort for Mahavir to have compassionate feeling for somebody. It was natural for him, right? और हमें प्रयत्न करना पड़ता है, हमें कहना पड़ता है, तो महावीर प्रेम हो गए, महावीर करुणा हो गए, क्योंकि उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। हमारे अंदर तो जैसे देखो, एक कुएं में अगर हम बाल्टी डालते हैं तो क्या निकलता है? पानी निकलता है। हमारे भीतर में अगर कोई बकेट डालेगा तो क्रोध है, हिंसा है, नफरत है, द्वेष, एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन महावीर के भीतर में कोई बाल्टी डालेगा तो क्रोध नहीं निकलेगा, क्योंकि क्रोध समाप्त हो गया है। तो महावीर को कोई क्रोधित नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रोध का कारण समाप्त हो गया है। और हमारे भीतर तो भरा ही हुआ है, जरा सा निमित्त मिलता है फिर धड़ास, जरा सा निमित्त मिलता है फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो उस निमित्त साधक कौन है? क्रोध का कारण होने पर भी जो क्रोधी ना हो वो साधक है, लोभ का कारण होने पर भी जो लोभी ना हो वो साधक है। तो उसके लिए हमें एवरी डे थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट। देखिए, मैं ऐसा कहती हूँ कि जैसे ये रुमाल है, हैंकरचीफ है, अब इसके मैं रुमाल हूँ, तो रुमाल जीवंत नहीं हो जाएगा। हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो आत्मा को ऐसा कहना जैसे हम पेंसिल को कह रहे हैं, राइट? आत्मा सुनती नहीं है, आत्मा नहीं सुनती है। आत्मा के उस अनुभव को लाने के लिए वो कचरा हटाना पड़ता है। वो कचरा हटता है तो आत्मा का अनुभव खुद हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि वो कचरा कैसे हटेगा। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देख लेनी है कि देखो, जब तक 10वां गुण स्थान है, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, एक आर्बिट्रेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट प्रोसीजर है जैनों में, जिसको हम गुण स्थान कहते हैं। तो जब 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान है और चौथे गुण स्थान मतलब 4th स्टेप पर सम्यक दर्शन है या आत्मा का अनुभव है। आत्मा का अनुभव होने के भी 10वें गुण स्थान तक क्रोध अंदर में पड़ा हुआ है। केनल भाई सुन लीजिए आप भी कि 10वें गुण स्थान तक, मतलब यात्रा काफी लंबी हो गई है, फिर भी 10वें गुण स्थान तक क्रोध अंदर में पड़ा हुआ है, मोह अंदर में पड़ा हुआ है। तो जब तक आपके सत्ता में, आपके कार्मिक बैंक में क्रोध पड़ा है, आपके कामिक बैंक में ईर्ष्या पड़ी है, तो छोटे में छोटा निमित्त पड़ आ जाता है तो फ्लेयर अप हो जाता है। छोटी से छोटी बात में भी हमें लगता है कि यस, I've been listening to स्वाध्याय for so many years, I've been listening to सत्संग for so many years, लेकिन वो सुन रहे हैं आप, राइट? लेकिन छोटी सी भी घटना क्योंकि अंदर में पड़ा है, वो निमित्त निकल के वो फ्लेयर अप हो जाता है। आप तो दीक्षा नहीं लिए, हम तो दीक्षा लिए हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं कि हम नहीं फिसलते हैं, हम नहीं फिसलते हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप वापस आ सकते हैं, राइट? कितनी जल्दी वापस आ सकते हैं। एक तो ऐसा क्रोध है जैसे पत्थर पर खींची गई लकीर है। एक बार गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि मतलब जन्म जन्मांतर गुस्सा है, पूरी जिंदगी किसी से बात नहीं करते हैं, राइट? एक जगह तो हम बोलते हैं वो आत्मा छोड़, एक हम किसी से बात नहीं करते हैं, तो दोनों मैच नहीं है ना। तो हमने एक तो ऐसा है जो पत्थर पर पड़ी हुई लकीर है, पत्थर पर पड़ी लकीर जो मिटती नहीं है। तो 10वें गुण स्थान में भी संजुलन क्रोध है, मतलब कोई घटना हुई, आपको गुस्सा आ गया, आपने बोला, लेकिन उसकी सस्टेनेंस 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं है। आपके पास में ताकत है कहने की सॉरी, आई शुडंट हैव सेड दैट, तो भी आप बड़े विजेता हैं, क्योंकि वो जो ईगो खड़ी है ना, वो आपको सॉरी बोलने नहीं देती है सॉरी, क्या इट वाज नॉट माय मिस्टेक, उसने किया ही ऐसे था। लेकिन अगर आप साधना के मार्ग पर हैं, अगर आप प्रगति के मार्ग पर हैं, तो 10वें गुण स्थान तक क्रोध आ सकता है आपको,
आप ऐसा मत सोचिए कि हम सत्संग सुनते हैं हमें गुस्सा नहीं आने ही वाला है। स्वीकार करिए इसको कि आने ही वाला है, क्योंकि सत्ता में बैंक में पड़ा है गुस्सा, वो कोई ना कोई कारण से निकलेगा ही। आपके परिवार के लोग निमित्त करेंगे, आपके बिजनेस के लोग करेंगे, आपके नेबर्स करेंगे, कोई भी करेगा निमित्त, और उसको सुनते उसके कारण से हमें गुस्सा आने ही वाला है। लेकिन कितना जल्दी आप समेटते हैं, कितना जल्दी आप सॉरी बोल देते हैं, कितना जल्दी आप उसको भूल जाते हैं, ये आपकी साधना है। तो एक कहा है भगवान ने, एक तो पानी पर, एक तो पत्थर पर खींची लकीर है और एक पानी पर खींचती है रेखा। तो पानी पर कितनी देर रहती है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रहती है। आ सकता है गुस्सा, आ सकता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, आ सकता है, लेकिन उसका ड्यूरेशन आप जितना कम करेंगे उतने बड़े आप साधक हैं, उतना बड़े आप साधक हैं। कितना जल्दी आप सॉरी बोल देंगे और उस अकाउंट को क्लियर कर लेंगे, फिर ये नहीं कि देखो मैं ही हमेशा सॉरी बोलता, फिर तो उसके बाद भी हमने एक और ईगो खड़ी कर दी। इसलिए हमारे गुरुदेव थे ना भरत भाई, बहुत अमेजिंग थे। बोलते थे बीत गया सो बीत गया, अब उसकी चर्चा छोड़ो, आज कर्म करो निष्ठा से, कल के मधु सपने छोड़ो। ठीक है, लाइफ है, लाइफ है, डोंट वरी, डोंट वरी। दो लोग रहेंगे, कुछ ना कुछ तो गचर पचड़ होने ही वाली है, लेकिन जितना जल्दी हम उससे निकल जाएंगे उतने बड़े हम साधक हो जाएंगे। बस तो प्रेम से जीना, हंसते हंसते जीना, कल्याण काम करके जीना, बस इतनी सी बात है। और मैं कह रही हूँ कि मोक्ष की चिंता मत करना, वो बाय प्रोडक्ट है, आ जाएगा। सम्यक दर्शन, चिंता जिस दिन छोड़ दोगे उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। बस बिट बाय बिट, एवरी डे, जितने अंदर में जाले कम होंगे, जितना सरल जीवन, जितना सुंदर जीवन, उतनी जल्दी सम्यक दर्शन आपके नजदीक आ जाएगा। बस राइट भरत भाई, वेरी नाइस, Thank you. यस। ठीक है किनाल भाई। Yes, Sadhvi ji, we are out of time. બે ક્વેશ્ચનમાં આપણા ક્વેશ્ચનનો ટાઈમ પણ વયો ગયો. So apologies to everyone else who had the intention to ask questions, but it is already 10 o'clock. And I would like to take this opportunity to once again thank Sadhvi ji for spending these last 2 days with us. Swayam se Samvad and Jivan Anand hai. It was really a 2-day yatra, Sadhvi ji, that just finished too quickly. But you have left us a lot of pointers to point about. And for those of you who have started thinking and would want a flashback of the last 2 days session, we will be uploading the sessions on YouTube. Go through them again, because there's such an insightful moments that we have had with Sadhvi ji over the last 2 days. I mean, I'm just awed, Sadhvi ji, that you've just changed my perspective of meditation to Maitri Bhav. I really am just figuring out how do I accept that meditation is something else altogether. That's what Mahavir did over the last 12 years. Oh my God, I could have been on the wrong path all along. No, you're not wrong path. परेश भाई बोले छे ना? हाँ साधु जी. परेश भाई, भगवान महावीर ने एक बात याद રાખવાની તમારે. ભગવાન મહાવીર દુનિયામાં એક જ પ્રોફિટ થયા જેને નેગેટિવ અને પોઝિટિવ બંને ધ્યાનની વાત કરી. આર્ત ધ્યાન, રૌદ્ર ધ્યાન નેગેટિવ ध्यान છે અને ધર્મ ध्यान, શુક્લ ध्यान પોઝિટિવ ध्यान છે. તો જે દિવસ આપણું મન બહુ નેગેટિવ હોય ને, બહુ દુખી હોય, ત્યારે ધ્યાન નહીં કરવાનું આપણે. કારણ કે તમે ધ્યાન કરશો તો એ જ વાતો પર ધ્યાન કરશો તમે. કારણ કે એ જ વાતો, કારણ કે આપણે આવડા મોટા તો સાધક છે નહીં, એટલે આંખ બંધ કરશો તો એમ લાગશે આને એમ કેમ કીધું, ઓલાને એમ કેમ કીધું, આના કેવું જોતું. તો હવે આપણે લેટ્સ બી પ્રેક્ટિકલ, આપણે જ્યાં છે ત્યાં છે ખાલી, રાઈટ? તો આપણે જ્યારે પછી ગુસ્સો આવી જાય, પછી તમે કીધું કે મેં તો ગુરુદેવ જે બી તમારા દીક્ષા ગુરુ જે બી હશે કે એમને મેં કીધું છે કે હું દરરોજ ધ્યાન કરીશ, હવે ધ્યાનનો ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે મારે ધ્યાન કરવું છે. પણ ધ્યાનમાં કરશો તમે શું? ઓલાને આમ કીધું, ઓલાને આમ કીધું, આ ધ્યાન કરશો. એના કરતા તમે તે દિવસ ભક્તિ કરજો, સારું વાંચન કરજો, મૈત્રી ભાવનો સંદેશ મોકલજો. તો જ્યારે મન એકદમ સારું, પ્રસન્ન, પોઝિટિવ હોય ત્યારે ધ્યાન કરજો, તો તમને આત્માના દર્શન થશે. એટલે મહાવીર એક જ પ્રોફિટ છે
જેને નેગેટિવ અને પોઝિટિવ બે ધ્યાનની વાત કરી છે. એટલે ધ્યાન બહુ મોટી વસ્તુ છે, બહુ સરસ વસ્તુ છે, પણ ધ્યાન કરવા માટે આપણી તૈયારી હોવું જોઈએ. ધ્યાન કરવા માટે થોડી ઓલી ભૂમિ તૈયાર કરવી પડે. તો તમે કિસાનને જોયા, ફાર્મરને? અમે અહીંયા રહીએ ને, બાજુમાં મોટો ખેત છે, ભરતભાઈએ જોયું છે. તો એ જ્યારે વરસાદ આવવાની હોય ને, બધી વીડ્સ કાઢે, બધા કાંટા કાઢે, પછી ટ્રેક્ટરથી ખેડીને એને સુંદર મજાનું બનાવે, પછી બીજ નાખે. તો ધ્યાનની ખેતી કરવા માટે તમારે પહેલા અંતસ્મનનો ધરાતલ, ધરતી તૈયાર કરવી પડશે, તો ધ્યાનનું બીજ પડશે. જો ધરતી તૈયાર નહીં હશે તો તમારી ફસલ ઉગશે જ નહીં, રાઈટ? ઉગશે જ નહીં. એટલે ધ્યાન માટે થોડી આગળની યાત્રા, થોડી અંતસ્મન સ્વચ્છ કરવાનું, થોડો પોઝિટિવ કરવાનું, પછી ધ્યાનની ખેતી થઈ શકે છે, રાઈટ? Thank you. Yes. Thank you, Sadhviji. So with that, we've come to the end of these 2 days lecture series, Sadhviji. And once again, on behalf of the Singapore Jain Religious Society, all the Bhayo, Beno, and our Vadilos and members from the Malaysia Sangh who have also participated, we would like to thank you very much for spending these last 2 days with us. The Singapore Sangh looks forward to your visit next year, Sadhviji, when we celebrate our 50 years as well. We look forward to having you in presence in Singapore as we celebrate our 50 years of registration. So looking forward to that as well, Sadhviji. બસ પ્રાર્થના કરીએ કોવિડ બધું જલ્દી પતી જાય, આપણે એટલે ડેફિનેટલી આવી શકીએ પછી ત્યાં. બસ, અને મને પણ ખૂબ આનંદ થયું. After a long time, I was able to connect with all of you. આ બધાના આટલા સુંદર, પ્રસન્ન, ચાર્મિંગ ફેસીસ જોઈને પણ હું બહુ ખુશ છું. બિકોઝ આ પેન્ડેમિકમાં ઘણા લોકો ડિપ્રેસ થઈ ગયા, ઘણા લોકોને આમ થોડુંક નથી સારું થયું, પણ આપ લોકો ધર્મના પ્રભાવથી આટલી સુંદર ઝીલ મેન્ટેન કરી છે, એના માટે આપને ખૂબ ખૂબ બધાને ધન્યવાદ છે, અભિનંદન છે. બસ આપણે ખૂબ લકી છે કે ભગવાનનું માર્ગ આપણને મળેલું છે. ખૂબ ભાગ્યવાન છે કે એ માર્ગ પર આપણે બધા ચાલીએ છીએ. બસ બૂંદ બૂંદ, ટીપ બાય બીટ આપણે ચાલતા રહીએ. મંઝિલની ચિંતા ન કરીએ, કારણ કે જે તમે ચાલો છો એમાંથી રિઝલ્ટ તો મળવાનું છે જ. અર્જુન રથ કો હાંક દે ભલી કરેંગે શામ. કારણ કે ચાલીએ છીએ તો રિઝલ્ટ તો આવવાનું છે, પણ રિઝલ્ટ શું આવશે એની આપણે ચિંતા બિલકુલ નહીં કરીએ. આપણી મંઝિલ બી સુંદર હશે જ, પણ મંઝિલ સાથે સાથે આપણો રસ્તો પણ સુંદર થાય, આ ખૂબ અગત્યની વસ્તુ છે. અને આ બધા માટે ખૂબ ખૂબ પ્રેમ અને આશીર્વાદ છે. સિંગાપુર સાથે અમારી બહુ લાગણી છે, બહુ લાગણી છે. આટલું સરસ બ્યુટીફુલ સમાજ છે, આટલું સરસ સંપવાળું સમાજ છે, અને આ સમાજને જોઈને અમે ખૂબ ખુશ થઈ જઈએ છીએ. હું બધાનું નામ નથી ઓળખતી, પણ હું ભરતભાઈને જોઉં, અતુલભાઈને જોઉં, કેનાલભાઈને જોઉં, પરેશભાઈને જોઉં, નગીનભાઈને જોઉં, બધા આટલા પિલર્સ છે. કીર્તિદા તો છે જ, જેને આટલું સુંદર સમાજને સાચવીને રાખેલું છે. અને મનુભાઈને જોઉં છું. તો બસ આવી જ રીતે સાચવીને રહેજો, સંભાળીને રહેજો, અને જીન શાસનના ગૌરવ તમે આવી જ રીતે વધારતા રહેજો. અને આપ હંમેશા સારું કામ કરો જ છો, અને ઈશ્વર આપને ખૂબ વધારે શક્તિ આપે કે હજી પણ આપ સારામાં સારા કામ કરી શકો, આ મંગલ ભાવ સાથે માંગણી કરું છું. નમો અર્હંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સબ સાહૂણમ, એસો પંચ નમોકારો સબ પાવપનાસનો, મંગલાણં ચ સવ્યસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ અર્હંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લુગુત્તમા અર્હંતા લુગુત્તમા, સિદ્ધા લુગુત્તમા, સાહુ લુગુત્તમા, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લુગુત્તમો. ચત્તારી શરણં પવજ્જામિ, અર્હંતે શરણં પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણં પવજ્જામિ, સાહુ શરણં પવજ્જામિ, કેવલી પન્નતમ ધમ્મં શરણં પવજ્જામિ. ઉપસર્ગાક્ષયં યાન્તિ છિદ્યન્તે વિઘ્નવલ્લય, મન પ્રસન્નતામેતિ પૂજ્યમાને જિનેશ્વરે. સર્વમંગલમાંગલ્યં સર્વકલ્યાણકારણં, પ્રધાનમ સર્વધર્માણાં, જૈનમ જૈતુ શાસનમ. શાંતિ શાંતિ શાંતિ.
આનંદ મંગલ આશીર્વાદ. મનુભાઈ, જયંતભાઈ, કેનાલભાઈ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. રશ્મિ તો બહુ સરસ ગાય છે. હા, after 20 long years you're still singing good. અતુલભાઈ મજામાં છો તમે? ગુડ છે. કીર્તિતાબેન આપને જોઈને You બહુ can આનંદ you થયો. can બહુ unmute સરસ. yourself. Yeah, anyone who Sadhviji is reaching out to, you can unmute yourself and answer as well. રાઈટ. કીર્તિતાબેન આપને જોઈને બહુ આનંદ થયો. બહુ આનંદ થયો. બહુ મજા આવી. Very બહુ very જ. good 2 days with you. Thank you, Kirtida. And you are so unique. તમને બંનેને જોઈને મને બહુ ખુશી થઈ, બહુ આનંદ થયો. એકદમ લાગે કે કચ્છના લોકો કેટલી પ્રોગ્રેસ કેટલી દૂર સુધી કરી છે. ખૂબ આનંદ છે, ખૂબ સુંદર છે કીર્તિદાબેન, ખૂબ સરસ છે. અતુલભાઈ, જય જીનેન્દ્ર, જય જીનેન્દ્ર. So how are you? Good? Very good indeed, and really so pleased and so much of appreciation that you took time out. I know exactly how busy you get. In fact, the weekends and evenings are even more difficult. So Jay has just come by to say Yes, hello Jay, as how are well. you? Jay, everyone remembers you here. You are so special for us. Jay, how are you? I hope to visit soon. Yes, you need to visit us very soon. Lovely to see you, Jay. Lovely to see you. Good. Hitesh bhai, Aarti, how are you? Aarti બેન, તમને યાદ કરું છું. કાલે પણ હું તમને ગોતતી હતી. કેમ છે તમને? બધું સરસ છે? એકદમ All સરસ. right? Thank you. એકદમ સરસ છે. વેરી નાઇસ. હું કાલે બી તમને I was looking for you. મનુભાઈ, આપ કેમ છો? આપને આવીને જોવું પડશે કે આપે જે પ્લાન્ટ એક સીડ લગાવેલું ત્યાં કચ્છમાં 2001 માં કેટલું મોટું થઈ ગયું છે. આજે જ 11 છોકરાઓ કોરોનાના આપણા પાસે આવ્યા છે જેના પેરેન્ટ જતા રહ્યા. We felt so good to support them actually. So nice, મનુભાઈ. આપે જે કામ શરૂ કર્યું એટલે દૂર સુધી પહોંચી ગયું છે. વિનોદભાઈ, સારું છે એકદમ આપને? Good છે. બહુ યાદ આવે છે. યાદ આવે છે ને, અમને બી યાદ આવે છે. So Mitaben, how are you? I'm good. Thank you so much. Right, It was right, so right. good to hear you. Right. વર્ષાબેન, how are you? તમે સારું થયું તમે અલગથી સાંભળો, નહીં અતુલભાઈ સાથે નહીં બેસવાનું. So two separate. Good. સરસ છે. પરેશભાઈ, so બહુ સરસ રીતે તમે સમાજનું કામ સંભાળો છો. તમને પણ ખૂબ અભિનંદન છે. બધાને ખૂબ મારા પાસે ખૂબ મેમોરીઝ છે. 20 વર્ષની મેમોરીઝ છે. અતુલભાઈ આટલા જેવું અત્યારે જય છે ને એવા અતુલભાઈ હતા. હવે અતુલભાઈ મોટા થઈ ગયા છે થોડા. બસ COVID effect છે થોડી કોવિડ ઇફેક્ટ છે. રાઈટ, કોવિડ ઇફેક્ટ છે. પણ હવે સારું છે ને ભરતભાઈ? કોવિડ ઇઝ રિડ્યુસિંગ ધેર. Yep. Okay, Vaccination is very We're good. getting in good. you're doing good now. સરસ. Very nice. હવે hopefully આ 21 સુધીમાં આપણે we will be all through with this COVID thing, yeah, na? Yes. We should. We should. Maximum by 22 March was maximum. Then I think we'll come to normal life. ભગવાન બી પરીક્ષા લઈ લીધી આપણી બધાની. બસ ઠીક છે, હે ને? પરીક્ષા લઈ લીધી આપણી બધાની. બસ. અને ફર્સ્ટ ટાઈમ એવું થયું કે collectively all of us felt the same thing actually. આવી એક વસ્તુ થઈ. All of us felt the same thing, no matter which country we live in, but everybody felt the same thing. અને એકબીજાની કષ્ટને પીડાને બધા એકબીજાને આપણે સમજી શક્યા. બસ એ સૌથી મોટી વસ્તુ થઈ. બસ તો બહુ આનંદ છે. બસ ધ્યાનથી રહેજો, બધા ખુશ રહેજો. અને હોપફુલી નેક્સ્ટ યર બધું સારું થશે તો આપણે ડેફિનેટલી ઇન પર્સન મળશું સિંગાપુરમાં. ચાલો, ધ્યાન રાખજો. બસ Thank you, Sadhuji. Mathane Madami. આશીર્વાદ. મથેણમ વંદામી. હાજી. મથેણમ વંદામી સાધ્વીજી. બસ બધાને ખૂબ બધાને આશીર્વાદ છે. બસ આવજો. Thank you, everyone. We will now end the Zoom session. Jai Jinendra. જય જીનેન્દ્ર.